Gupta, who is MBBS, MD, TM Neuro, and PDF in epilepsy. So he did MBBS and MD from Maulana Azad Medical College, Delhi, and DM training in neuroscience from GP Pant Institute, New Delhi again, and advanced epilepsy training at Venice, Italy. Currently, he is working as an associate professor of neurology at GP Pant Hospital, New Delhi. He has also working in the capacity of registrar academic at GP Pant Hospital, and has also working as an assistant warden and academic council member of University of Delhi. Special interest into the science behind our thoughts, emotions, actions, and he has a special interest among the relationship between the modern neuroscience and the spiritual knowledge. So we got a great person who is having specialty in spirituality as well as in medical science, right? And the practice of Raj Yoga lifestyle since many years, invited speaker at different spiritual scientific discourse, including Zindagi Bene Asan, which is guided at a Peace of Mind news channel or Peace of Mind TV channel, and he was also invited as a youth parliament at Gyan Sarovar as a chief speaker, recipient of many national as well as international awards, including World Federation of Neurology Fellowship Award, ILAE Barsi Award, San Servolo Barsi Award, Saroj Jha Best National Award, paper for Best National Paper Award, and train more than 500 medical personnel at Asha Kiran, which is a home for mentally retarded person under Ministry of Social Justice, Delhi. Avid speaker at both national and international forum on science behind spirituality. He has also given a talk on concept of brahmacharya, and he was invited as a speaker at reputed college of Delhi University. Recently conducted a scientific seminar on real motivation for student at Deshbandhu College at again Delhi, developing the mental resilience among students at South Campus, University of Delhi, and one-day seminar on the theme like Think and Grow Rich for the youth of Hindu Bhavan. So we have a great honor for having such a speaker at our city. So we again welcome Dr. Sopan Gupta with a big clap. So, thank you. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. तो अभी आपने इतना अच्छा सेशन सुना, माइंड गेम्स. हाँ, डॉक्टर्स के साथ कोई माइंड गेम्स खेले, डॉक्टर्स तो वैसे ही इंटेलेक्चुअल होते हैं. तो बीच बीच में हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ में वी हैव फन लाइक दिस, हमें अच्छा लगता है. तो लेकिन माइंड गेम्स के पीछे क्या लेसन्स हैं, हमें उसको समझना है. हर स्टोरी के पीछे कोई ना कोई एक लेसन होता है, एक टीचिंग होती है. तो अगर हमने उसको पकड़ लिया तो दैट इज़ द एसेंस. अभी नेक्स्ट सेशन से पहले हम अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे, नहीं तो ज़्यादा काम करेंगे तो थक जाएगा ना. तो 1 मिनट हम सभी बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे. जस्ट साइलेंस, नथिंग, एंड जस्ट रिचार्ज, रिलैक्स. Okay.
तो ये 1 मिनट का रिलैक्सेशन देखो कितना पावरफुल होता है। पहले कंडीशन और अभी 1 मिनट में ही हमने कुछ अपनी एनर्जी को रिकवर किया। इसको कहते हैं पावर ऑफ साइलेंस। ऐसे ही जब हम पेशेंट्स देखते हैं, अगर एक पेशेंट जब बाहर जा रहा है, दूसरा पेशेंट अंदर आ रहा है, उस समय में हम 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए अपने माइंड को बिल्कुल साइलेंट कर दें, तो हमारे पेशेंट्स को हम पूरा अटेंशन दे सकते हैं जो वो डिज़र्व करता है। नहीं तो क्या होता है, पहला दूसरा पेशेंट देखा और जैसे जैसे वो चौथा, पाँचवा, सातवां, 10वां, 20 पेशेंट, 30 पेशेंट आते हैं तो हम एग्जॉस्ट होते जाते हैं, राइट? ओके, तो माइंड गेम हमारे शिवलाल भाई जी ने बहुत अच्छे खेले, बहुत अच्छे से हमें हंसाया, एक लाइट मूड किया। अब हम थोड़ा सा सीरियस भी होंगे और जो हमारा मेडिकल कोर्स सब्जेक्ट है उसको हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल तरीके से समझेंगे। हमने अपनी लाइफ में वही किया, न्यूरो साइंस हमने पढ़ा, लेकिन जब स्पिरिचुअल साइंस पढ़ा तो ये समझा कि स्पिरिचुअलिटी कोई अलग साइंस नहीं है। स्पिरिचुअलिटी साइंस का एडवांस्ड फॉर्म है। वो कैसे है आज हम देखेंगे। ओके, सो द मैजिकल क्योर। हम सब चाहते हैं हमारे पेशेंट्स अच्छे से अच्छा करें। सक्सेसफुल डॉक्टर वही है जिसके पेशेंट्स ज़्यादा ठीक होते हैं, और फिर उसका नाम भी होता है, नेम फेम होता है, और एक डॉक्टर का सपना होता है कि वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर बने। तो हम रियल वर्ल्ड स्टोरीज़ जो हमने अपने पेशेंट्स देखे आपके साथ शेयर करेंगे, उनको कैसे मैजिकल क्योर दिया। तो आप देखिए, ये एक पेशेंट हैं, 3 साल से इनको ये प्रॉब्लम थी। इनकी कंप्लेंट थी कि कमर से लेके नीचे तक पूरा इनका हाथ पैर काम नहीं करते थे और पूरा सेंसेशन लॉस था। 3 इयर्स अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए, पूरे इंडिया में घूमे, लेकिन कोई रिलीफ नहीं हुआ। इनके MRI स्कैन्स हुए स्पाइन का, ब्लड टेस्ट हुए, लेकिन सब नॉर्मल थे। डायग्नोसिस क्या है? हाँ, तो ये फिर फाइनली हमारे पास आए और हमारी मीटिंग में हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने प्रेजेंट किया केस। तो हमने कहा इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ MRI में नहीं है, कुछ गड़बड़ है। 7 दिन तक हमने उनको एडमिट किया और ये ट्रीटमेंट दिया, और वो ट्रीटमेंट के बाद वो पेशेंट वॉकिंग, ये उनका आफ्टर 7 डेज है। तीन साल का पेशेंट 7 दिन में चलने लगा। मिराकल। हाँ, प्रॉब्लम क्या था? 3 साल पहले उनको कोविड जब हुआ, तो कोविड में ये एक रिच फार्मर थे, लेकिन फार्मिंग में इनको बहुत नुकसान हुआ कोविड की वजह से। मेजर फाइनेंशियल लॉस था, ठीक है। फाइनेंशियल लॉस से उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हुआ, और उसकी वजह से जिसको हम क्या कहते हैं, साइकोजेनिक इलनेस। तो ये साइकोजेनिक पैरापरेसिस का पेशेंट था। ये लड़की, इसको प्रॉब्लम थी कि राइट फेस में इसके ब्लिंकिंग होती थी 2 साल से। आँख से दिखाई नहीं देता कि लाली होती है। अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, फ़ायदा नहीं हुआ। 5 दिन के बाद आइज़ बिल्कुल ठीक हो गई। प्रॉब्लम थी स्कूल में ग्रेड्स अच्छे नहीं थे, पेरेंट्स की डांट थी। 3rd गर्ल, रिसेंटली मैरिड, 1 साल मैरिज को हुआ। मैरिज के तुरंत बाद ये हाथ कांपने लगा। बहुत सारा इलाज लिया, मनी स्पेंड किया, फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया। 7 डेज़ के बाद आप देख सकते हैं उसका हाथ
ठीक हो गया, राइट। अनदर लेडी, ये डिफ़िकल्ट केस था, बहुत सारे फिजिशियंस ने देखा, जब ऐसी कोई मूवमेंट आती है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट ने इनको कई मेडिसिन दी डिस्टोनिया के लिए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। हमारे पास आया, उसको ट्रीटमेंट दिया कुछ, और आफ्टर 5 days उनकी मूवमेंट्स ठीक हो गई। मैजिकल। हर कोई चाहता है ऐसे पेशेंट ठीक हो जाएं। क्या किया हमने? प्लेसिबो दिया। हर केस में किसी की ना किसी की एक स्टोरी थी, स्ट्रेस फैक्टर था, किसी को मैरिज इश्यूज थे, किसी को फाइनेंशियल लॉस था, किसी को स्कूल में इश्यूज था, किसी का हेल्थ का इशू था। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, साइकिक प्रॉब्लम होती हैं और वो हमारे शरीर पर असर करती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? साइकोसोमैटिक डिजीजेस, ये हम जानते हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट, हमने क्या किया? उनको कोई मेडिसिन ड्रग नहीं काम करेगी उसमें, हमने उनको डोज किसका दिया? प्लेसिबो का, जिसमें मेडिसिन नहीं देते आप, कुछ शैम देते हैं, लेकिन उनको बताते हैं कि इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उनको होप देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं। तो माइंड ओवर मैटर, हम कहते हैं ना, जहाँ पर दवा काम नहीं करती वहाँ पर दुआ काम करती है। हम कह तो देते हैं डॉक्टर्स, हम सब एक ही कम्युनिटी के हैं, लेकिन दुआ की इम्पोर्टेंस क्या है इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो जहाँ पर हमारी मेडिसिन काम नहीं कर रही, वहाँ पर बिलीफ ने काम कर दिया कि आप ठीक हो जाओगे, होप ने काम कर दिया। और डॉक्टर्स ने भी डायग्नोसिस तो कर दिया था साइकोजेनिक है, लेकिन वो जो उसको होप देना था, हैप्पीनेस देना था, वो कहीं ना कहीं शायद लैकिंग था। तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक्यूपंक्चर, जिसमें नीडल्स से, प्रेशर पॉइंट से पेन रिलीफ किया जाता है, लेकिन स्टडीज़ में जब एक इंसान को टूथपिक से वो किया गया इफ़ेक्ट, तो उसको सेम इफ़ेक्ट आया और बताया क्या गया कि आपको एक्यूप्रेशर किया जा रहा है, तो उसको भी पेन रिलीफ हो गया, जिसको हम प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं। और प्लेसिबो की हम क्या डेफिनेशन देते हैं कि सब्सटेंस और ट्रीटमेंट है वो इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, क्योंकि उसमें कुछ एक्टिव ड्रग नहीं है, राइट। बट माय क्वेश्चन इज, क्या ये रियली में इनएक्टिव है? हमें ये पता है बाय एनी लॉ, टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर कुछ रिएक्शन आ रहा है तो उसका कुछ एक्शन हुआ होगा। तो अगर कुछ एक्टिव रिजल्ट आ रहा है, पेशेंट ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब आपने कुछ दिया है, उसमें कुछ तो एक्टिव किया होगा। इनएक्टिव एक्शन का इनएक्टिव रिजल्ट, एक्टिव रिजल्ट आ नहीं सकता। तो हमने क्या एक्टिवली दिया? ड्रग्स तो दिए नहीं एक्टिवली। क्या एक्टिव दिया? हमने फिजिकल ड्रग्स नहीं दी, लेकिन जो चीज़ दिखाई नहीं देती लेकिन एग्जिस्ट करती है वो दी। और वो कौन सी पिल्स थी? होप की, लव की, हैप्पीनेस की, पावर की, राइट। ये आर्ट जो थी, जो एक हीलिंग टच था जो डॉक्टर्स का था, क्या आपको नहीं लगता वो कहीं ना कहीं गायब हो रहा है? पहले जब डॉक्टर के पास जाते थे तो वो पहले हाल चाल पूछता था, अच्छा आप कैसे हैं, उसकी एक स्माइल से ही मरीज़ आधा ठीक हो जाता था। लेकिन आज जब हम रेजिडेंट्स को, अपने डॉक्टर्स को, यंग जनरेशन को देखते हैं, तो सिर्फ दवाई लिखना, हम इतने बिजी हो गए हैं क्योंकि पेशेंट बढ़ गए हैं, तो हम भूल जाते हैं कि उनको स्माइल करके ग्रीट भी करना है, उनको मेडिसिन के बारे में बताना है कि आप इससे ठीक हो जाओगे। और जब हम मरीज़ को बताते हैं ना कि आप मेडिसिन से ठीक हो जाओगे, तो मरीज़ को जो होप मिलता है वो सिर्फ एक शैम नहीं है, वो इनएक्टिव नहीं है, उससे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं जो आपकी मेडिसिन को कई टाइम्स इफ़ेक्टिव बना देता है। और ये फ्री है, क्या लगता है इसमें? और आपकी प्रैक्टिस को ये कितना टाइम्स बेटर कर देता है, राइट। पेशेंट्स कितना फ़ायदे में हो गए आपने देखा। दूसरी तरफ प्लेसिबो इफेक्ट का ऑपोजिट होता है नोसिबो इफेक्ट। कोई जानता है नोसिबो इफेक्ट क्या है? एनीबडी? एनीबडी? वी आर ए लर्निड पॉपुलेशन। ओके, तो इस कार्टून से हम समझ सकते हैं। तो ये एक
बॉय और एक गर्ल की स्टोरी है. सो द बॉय वेंट टू हिज फ्रेंड और वहाँ पर एक बास्केट देखता है वो, जो एक डॉग के बास्केट होती है उसके फूड की. तो वो कहता है कि आई एम एलर्जिक टू डॉग्स हेयर, माई आइज टीयर अप एंड माई फेस स्वेल व्हेन आई एम इन कंटैक्ट विद द डॉग्स हेयर. और वो उसका स्वेलिंग दिख जाता है, यू कैन सी, राइट. बट सरप्राइज कब होता है, जब वो कहती है कि ओ डियर, आई डोंट हैव अ डॉग, आई हैव अ पिग इंस्टेड. और वो कहता है ओ वेल, और उसकी स्वेलिंग ठीक हो जाती है. तो क्या समझे? इट्स ऑल इन द माइंड. हमारा माइंड हमको कैसे चलाता है, राइट. इसको नोसिबो इफेक्ट कहते हैं कि जो चीज़ है नहीं उसका नेगेटिव इम्प्रेशन लेना. और प्लेसिबो इज़ जो चीज़ को हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं. हम देखते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें पेशेंट्स को रियल प्रॉब्लम्स नहीं हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं. हिस्टीरिया, आप सब जानते हैं हिस्टीरिया क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लेडी, इनको 5 मेडिसिन्स थी सीजर्स की, एपिलेप्सी की, बट हमें पता है ये एपिलेप्सी नहीं है, ये हिस्टीरिया है. MRI, EEG सब नॉर्मल, राइट. अगेन दिस लेडी, सब टेस्ट नॉर्मल हैं, कोई फिजिकल इलनेस नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो है. और प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं कुछ कारण भी है. फिजिकली हमें नहीं मिल रहा है. EEG MRI नॉर्मल है. EEG MRI आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स को तो देख लेगा, बट कैन इट फाइंड आउट मेंटल इश्यूज? नो, देयर वी लैक आउट. तो बियॉन्ड द मैनिफेस्ट, जो हमें दिखता है हम उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं, और वो करना भी चाहिए. बट जहाँ जो चीज़ नहीं दिखती है, हमें वहाँ पर अपनी आँख नहीं बंद करनी चाहिए, क्योंकि हम डॉक्टर हैं. पेशेंट हमारे पास ठीक होने आता है, राइट. तो जैसे इरिटेबल बावल सिंड्रोम. इरिटेबल बावल सिंड्रोम में क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होगा पेशेंट को, डिस्पेप्सिया होगा, वॉमिटिंग्स होंगी, बट अल्ट्रासाउंड, CT, MRI सब नॉर्मल होता है. लाइक पैनिक अटैक्स, पेशेंट्स को चेस्ट पेन, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ECG नॉर्मल है. चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस हो रही है, फेंटिंग हो रही है, न्यूरोलॉजिस्ट ने चेक किया, सब कुछ किया, टेस्ट सब नॉर्मल है. कैसे? हम कहते हैं साइकोसोमैटिक है, राइट. ये जो पेशेंट था, ये पेशेंट 3 साल से अपाहिज था. ही वॉज ऑन बेड, ऐसे चलता था. 1 हफ्ते में जब ठीक हो गया ना, तो यही पेशेंट को हमने दोबारा से, हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में होती है मीटिंग्स, तो हमारे एकेडमिक मीटिंग में हमने इस पेशेंट को प्रेजेंट किया. एंड हमारे जो चीफ थे, ही सेड, देखिए ब्रेन ट्यूमर्स की सर्जरी जो सक्सेसफुल होती हैं, बड़े बड़े ब्रेन ट्यूमर्स की सर्जरी, ये उससे कोई कम नहीं है. क्यों? जैसे ब्रेन ट्यूमर में आप किसी एक पेशेंट को नया जीवन देते हो, आपने भी चाहे उसको प्लेसिबो दिया, लेकिन एक अपाहिज को चला दिया. पेशेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको क्या मिला, उसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि वो चल पाए, अपाहिज से फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाए. तो ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है. लेकिन ये कैसे किया? कौन सी पिल दी? वो पिल दी थी हमने होप और हैप्पीनेस की. यहाँ पर हम आपको एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, जिसको डॉक्टर डिएगो पिज़ागली ने दिया, और जिसको हम कहते हैं रूमिनेशन. रूमिनेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये अमिगडाला है, राइट. अमिगडाला हमारा इमोशनल सेंटर होता है ब्रेन में, जहाँ से इमोशंस आते हैं. और ये है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फ्रंट में, जहाँ से हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, करेक्ट. ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हम दुखी होते हैं, व्हेन वी आर सैड, और हमारा अमिगडाला नेगेटिव हो जाता है, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, एंग्शियस होते हैं, तो यहाँ से रिप्रेशन होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को. तो नेगेटिव इमोशंस विल नॉट अलाउ द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स टू वर्क स्मूथली.
या उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। और इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ये है कि जब हम दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि अभी मुझसे कोई बात मत करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनके आसपास वाले कहेंगे ये तो छोटी सी बात है, इसमें समझने की क्या बात है। कहेंगे नहीं, अभी मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, अभी मुझे अकेला छोड़ दो। जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, एंग्शियस होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमें अगर सर्जरी परफॉर्म करनी है, क्या हम कर पाते हैं? नहीं। सर्जरी तो छोड़ो, घर का काम भी करना है। हड़बड़ाहट में कैसे काम होता है? गैस में से कुकर नहीं बना पाएंगे, खाना ठीक से नहीं बना पाएंगे। और वही चीज़ अगर हम रिलैक्स्ड होते हैं, खुश होते हैं, वी आर हैप्पी, तो हम 1 घंटे में जो हम एक काम करते थे 4 काम एक साथ कर सकते हैं, राइट? स्ट्रेस में हमारा माइंड, थॉट ब्लॉक हो जाता है। अपने स्कूल डेज़ या कॉलेज डेज़, मेडिकल डेज़ को याद करो, जब वाइवा के लिए जाना होता था, हमने जो याद भी किया होता था, स्ट्रेस में क्या होता था? मेंटल ब्लॉक। पता था आंसर, और फिर जब वापस बाहर आते थे एग्ज़ाम से निकल के, क्या कहते थे? अरे मुझे तो इसका आंसर आता था, मैंने बोला क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि इमोशंस, अगर इमोशनल सेंटर नेगेटिव हो जाता है तो वो लॉजिकल सेंटर को भी काम करने नहीं देता। और इसी वजह से कहावत बनी, लव इज़ ब्लाइंड। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। वाई? क्योंकि जब लव बहुत हावी होता है तो वो लॉजिकल सेंटर को हाईजैक कर लेता है। इसीलिए जिससे हमें बहुत प्यार होता है हम उसकी गलती को छुपा देते हैं, राइट? और जिससे हमें थोड़ा सा 36 का आंकड़ा होगा, उसकी सही बात को भी हम गलत बोल देते हैं। लॉजिक के हिसाब से सही सही है, गलत गलत है, लेकिन इमोशंस जब हावी हो जाते हैं। अब ये जो पर्सन था, ये पर्सन एक मेंटली ओके पर्सन है, राइट? उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस से स्ट्रेस हुआ। अब उसने ये डिज़ीज़ एक उसको एस्केप करने के लिए कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की है, मैं कैसे चलाऊंगा, ये एटीट्यूड ले लिया, ठीक है? क्या इससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ये उसको भी पता है। किसी भी नॉर्मल पर्सन को पता है कि मुझे कोई नुकसान हुआ तो अगर मैं उसको स्ट्रेस लूँगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये तो बल्कि प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है? लेकिन वो फिर भी इससे बाहर क्यों नहीं आ पा रहा था? क्यों उसका लॉजिकल माइंड काम नहीं कर रहा था? क्यों? क्योंकि उसका इमोशनल माइंड नेगेटिव हो गया था, स्ट्रेस्ड आउट हो गया था, करेक्ट? अभी हम सुनते हैं, आपने भी सुना होगा, डॉक्टर्स के केसेस में भी सुसाइड्स होते हैं, न्यूज़ में आता है, हार्ट अटैक्स होते हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, मेडिको लीगल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या उससे सोल्यूशन मिल जाता है? सुसाइड करने से क्या सोल्यूशन हो गया या और प्रॉब्लम बढ़ गया? लेकिन क्यों एक इंटेलेक्चुअल पर्सन ने सुसाइड कर लिया? आपको वंडर लगता होगा कि कैसे कर लिया? ऐसे कर लिया क्योंकि उसका इमोशनल माइंड इतना नेगेटिव हो गया कि वो लॉजिकल माइंड को काम करने नहीं दे रहा था। तो उसके लिए उसको नहीं समझ में आ रहा है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, राइट? ऐसे ही इस व्यक्ति को उस समय नहीं समझ में आ रहा था। हमने क्या किया? जो उसको चलाया, मैजिक क्या किया? उसके इमोशनल माइंड को पॉजिटिव कर दिया, हैप्पीनेस दे दी, इमोशनल माइंड को हील कर दिया। लॉजिकल माइंड तो उसका ठीक ही था, लॉजिकल माइंड में प्रॉब्लम नहीं थी। इमोशनल माइंड को ठीक किया, उसका जो एक्शन नेगेटिव हो रहा था लॉजिकल माइंड पे वो ठीक हो गया, तो वो चलने लगा। इसीलिए कहते हैं जहाँ पर दिल है वहाँ पर दिमाग भी है। तो दिल के साथ दिमाग, और दोनों जब मिलते हैं तभी वंडर्स होते हैं। आज देखो पेरेंट्स अपने बच्चों को साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं काउंसलिंग के लिए, ये बहुत कॉमन देखते हैं हम। कारण क्या है? पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सिंस बर्थ हैं, वो नहीं समझा पा रहे, काउंसलर समझा देंगे। क्यों? क्या फ़र्क है दोनों में? काउंसलर की बात बच्चे सुनते हैं इसलिए तो लेके जाते हैं, नहीं तो क्यों लेकर जाते? पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स कैसे समझाते हैं? डांट के।
उनके इमोशनल माइंड को नेगेटिव करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉजिकल माइंड उनका काम करे। होगा नहीं। हमारी छोटी सी नीस है 6 इयर्स की, बहुत शार्प है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन एक बार मम्मी उसकी डांट रही थी पढ़ाते हुए, तो उसकी मम्मी ने कहा तुम्हें ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकती। उस बच्ची ने इतने प्यार से कहा, हाँ मम्मी मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे कोई सवाल सॉल्व नहीं होगा। जबकि वो बच्ची ब्रिलियंट है। क्यों? इमोशनल माइंड डाउन होगा तो लॉजिक भी, हमारा जो पावर है वो भी ब्रेन की ख़त्म हो जाती है। काउंसलर पहले समझाना शुरू नहीं करता, वो पहले सुनता है, उसको रिलैक्स करता है, उसके मूड को ठीक करता है कि आप ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब अच्छा होगा, आई एम देयर फॉर यू। पहले इमोशनल माइंड को हील करता है, लॉजिक माइंड तो उसका समझ ही रहा होता है बच्चे का, तो वो तुरंत पिकअप कर लेता है सिग्नल। तो लेसन क्या है? लेसन क्या है? हैप्पीनेस बूस्ट योर ब्रेन पावर। हम में से कोई चाहता है हमारे ब्रेन की पावर कम हो? नहीं चाहता ना? पक्का कोई भी नहीं चाहता। लेकिन हम करते क्या हैं? हमसे कोई गलती हुई, दूसरों की तो छोड़ो, हमसे कोई गलती हुई, खुद को कितना कोसते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं, गिल्ट में, अपने आप को एक क्रिमिनल समझने लगते हैं। गलती कुछ भी हुई, इंसान है तो गलती हो सकती है, दैट्स ओके, लेकिन कितना गिल्ट में जाते हैं। गिल्ट में जाना मतलब इमोशनल माइंड इज डाउन, डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट? तो लॉजिक माइंड काम करेगा, तो हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, सॉल्यूशन से दूर जा रहे हैं। लॉजिकल माइंड काम नहीं करेगा तो सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाओगे, और दूसरों के साथ भी फिर वही करते हैं। तो आज से हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? हमेशा खुश रहेंगे, चाहे प्रॉब्लम्स बाहर हैं, प्रॉब्लम्स बाहर हैं, उनको अगर हमें सॉर्ट आउट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं सॉर्ट आउट? खुश रह के या स्ट्रेस होके? खुश रह के। पक्का? इसीलिए मन को मित्र भी कहते हैं और मन को शत्रु भी। समझे क्यों कहते हैं? मन अगर शक्तिशाली, पावरफुल है, पॉजिटिव है, तो आपके वो लॉजिकल ब्रेन को बहुत स्टिमुलेट कर देगा, बूस्ट कर देगा, और अगर उसको नेगेटिव कर दिया तो आपके लॉजिकल ब्रेन को भी शट डाउन कर देगा। क्लियर है? तो अब तो स्ट्रेस नहीं लेंगे कभी। हो गया पक्का? बंद करें लेक्चर यहाँ पर? ओके, ठीक है। तो भाई कितने लोग अभी भी कहते हैं कि आप, ये तो हमें समझ में आ गया कि खुश रहना हमारे लिए अच्छा है, प्रॉब्लम को हम बेटर सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमें समझ में आ गया। ज़रा हैंड रेस करेंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन अभी भी हमें नहीं लगता कि हम हमेशा खुश रह सकते हैं। ठीक है, हमसे भी कोई कहे कि खुश रहो, जो दुनिया कहती आई है, आज आपने सिर्फ एक लॉजिक बता दिया कि क्या लॉजिक है, समझ में आ गया। हमें पता है कि खुश रहना चाहिए, कौन कहता है कि खुश नहीं रहो? ये तो कोई भी नहीं कहता, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हम खुश नहीं रह पाते, तो क्या हमेशा खुश रहना पॉसिबल है भी? सवाल उठेगा मन में, नहीं उठेगा? देखते हैं। ओके, बैक टू योर MBBS डेज, बैक टू योर ग्रेजुएशन डेज। कंडीशनिंग सबको पता है? पता है? मालूम है? तो एक डॉग को पहले फूड रखा उसका मनपसंद, सेलिवेशन हुआ, राइट? बेल बजाई, बेल डॉग को लगा ये क्या है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं हुआ, राइट? फिर कुछ दिन तक क्या किया? बेल और फूड साथ साथ रखा, तो सेलिवेशन हुआ। अब उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया? सिर्फ बेल बजाई, तो सेलिवेशन होगा नहीं होगा? पहले तो नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? हाँ बोलिए। ब्रेन कंडीशनिंग हो गई। ठीक है, किसी को नहीं समझेगा तो पूछ सकते हैं, हालांकि ये तो फिजियोलॉजी में आप सबने पढ़ा है, राइट? कंडीशनिंग हो गई ब्रेन की। एग्जैक्टली हमने दो चीज़ें हैं, बेल और फूड,
पहले बेल से कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, फूड से हुआ था, लेकिन दोनों को कंबाइन कर दिया तो अब बिना फूड के भी सेलिब्रेशन हो रहा है, मतलब बेल सेलिब्रेशन कर रहा है। और चीज़ लग रही है ना कि बेल से कैसे सेलिब्रेशन हो रहा है, राइट? ऐसे ही बाहर की जो सिचुएशन है और जो मेरे मन का रिस्पॉन्स है स्ट्रेस का, बाहर कुछ खराब हुआ, पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं हुई, पेशेंट ने कुछ बदतमीज़ी की, घर में मुझसे किसी ने झगड़ा किया, मेरा कोई काम नहीं बना, मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ, ये बाहर की सिचुएशन है। और हमारा रिस्पॉन्स बहुत टेंशन हो रही है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, मेरे को बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है। हमने दोनों को कंडीशन कर दिया, कपल कर दिया। हमने क्या कहा, अगर बाहर की सिचुएशन प्रॉब्लम है तो अंदर तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, स्ट्रेस तो आएगा ही, इसमें सोचने की क्या बात है। अगर आप मुझसे कहो कि बाहर प्रॉब्लम है और आप अंदर से स्ट्रेस ना करो, ये तो बहुत अननेचुरल चीज़ है। यही कहेंगे ना, भाई बाहर प्रॉब्लम है तो स्ट्रेस तो होगा ही। हमने आज सेशन की शुरुआत हम सुन रहे थे, तो हमारे डॉक्टर निर्मल ने शुरुआत कैसे की, हमारे डॉक्टर्स की लाइफ में स्ट्रेस तो एक पार्ट है, हिस्सा है, हमने उसको एक नेचुरल मान लिया। बट इज़ इट सो? जैसे उस डॉग के लिए वो कंडीशनिंग इतनी पक्की हो गई थी कि अब बेल बजते ही उसको सेलिब्रेशन हो रहा है, विच इज़ नॉट नेचुरल। सिमिलरली बाहर की परिस्थिति सिचुएशन एक चीज़ है, मेरा रिस्पॉन्स इंडिपेंडेंट है। इट्स नॉट दैट कि ये होगा तो ये होगा ही होगा। जैसे बेल और फूड अलग अलग है, ऐसे ही बाहर की सिचुएशन और मेरा रिस्पॉन्स अलग है। कैन देयर बी अ डिफरेंट रिस्पॉन्स? कैन देयर बी अ डिफरेंट रिस्पॉन्स? हो सकता है। क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? बाहर एक प्रॉब्लम आई, आप स्ट्रेस ना क्रिएट करके दूसरा रिस्पॉन्स क्रिएट करना चाहते हो, क्या? सॉल्यूशन तो हम चाहते ही हैं, लेकिन स्ट्रेस की जगह कौन सा इमोशन? स्ट्रेस इज अ इमोशन, है ना? सैडनेस, स्माइल, यस। अभी हमने देखा ना, हैप्पीनेस गिव्स यू ब्रेन पावर टू डील विद द सिचुएशन। हम सब चाहते हैं हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंडीशनिंग इतनी पक्की है कि हम सॉल्यूशन की तरफ चाहते तो हैं जाना, लेकिन जा किस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें पता है कि हैप्पी अगर हमारा माइंड रहेगा तो हम सॉल्यूशन अच्छे से ढूंढ पाएंगे, विच यू सेड विच वेरी राइटली। लेकिन हम हैप्पीनेस ना क्रिएट करके क्या क्रिएट कर रहे हैं? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन। और फिर जब स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी होगा तो ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, एक और गलती करते हैं, गलती पे की गलती, गलती पे गलती, वो एक विशियस साइकिल बन जाती है। और फिर वहाँ पर अगर भगवान मददगार है तो शायद वो ठीक कर दे तो ठीक हो जाए, नहीं तो हमने तो गलत राह पकड़ ही ली थी। करेक्ट है ना? तो आज हम इस कंडीशनिंग को समझ के अब जो हमारा सेलिब्रेशन मतलब एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बना लिया था स्ट्रेस क्रिएट करने का, उसको अलग कर देंगे कंडीशन से। प्रॉब्लम्स तो बाहर आएंगी, हम सोचे प्रॉब्लम्स ना आए, वो तो हो नहीं सकता, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आएंगी, लेकिन हमें उनको ठीक करना है। तो ठीक करने का रिस्पॉन्स क्या होगा? हैप्पीनेस रिस्पॉन्स, अपने माइंड को हैप्पी। इसीलिए आज से हम ये प्लेज कर लेंगे, हमें समझ में आ गया है, प्रॉब्लम आते ही हमारे दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए, स्ट्रेस आने लगे ना, एकदम घबराहट होने लगे, तो एकदम से अपने माइंड को बोलना, देखो तुम घबराहट करोगे ना तो और सोल्यूशन नहीं मिलेगा और तुम सोल्यूशन से दूर जाओगे। तो कोई बात नहीं, खुश रहो, खुश रह के सोल्यूशन ढूंढो। सोल्यूशन तो हम हर कोई ढूंढते हैं, लेकिन खुश रह के। इसीलिए मरीज़ को हम क्या कहते हैं, देखो बीमारी तो सहनी पड़ेगी, दुखी हो के सहो या खुश हो के सहो, किस में फ़ायदा ज़्यादा है? तो ये जो हमारे साथ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये भी एक बीमारियाँ ही तो हैं। वो फिज़िकल बीमारी है जो हमने पढ़ा है, और ये मेंटल या हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो खुश है के सह लेते हैं, और खुश होके सहेंगे, अच्छी तरह से सॉल्यूशन भी कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग, राइट? बियॉन्ड द मैनिफेस्ट, सबको पता है, लेकिन
इस चीज़ को अब हमें अपने नॉलेज की आइज से देखना है, राइट? विद मी, सो फार क्लियर? ओके। विचारों की अभी बात चल रही थी पिछले सेशन में कि हमारे विचार कितने पावरफुल होते हैं, राइट? विचार हमारे इमोशंस पे अभी हमने बात की, कैसे इमोशंस हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। हमारे जो थॉट्स हैं वो नेचर को भी अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे? ये डॉक्टर मसारू इमोटो हैं जापान के, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे। कौन जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में? वेरी नाइस। इसका मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर भी पढ़ते रहते हैं। ओके। तो इन्होंने क्या किया, वाटर के सैंपल्स लिए और एक ही वाटर को और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और वाटर को उन्होंने अलग अलग वाइब्रेशन दिए। एक वाटर को थैंक यू के वाइब्रेशन दिए, एक को इविल बैड वाइब्रेशंस दिए, सिर्फ वाइब्रेशंस दिए, थॉट्स दिए, और एक को प्रेयर के थॉट्स दिए। एंड यू नो व्हाट, कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि जिसको थैंक यू के वाइब्रेशन दिए थे, ये उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। आप लोग जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना वाटर मॉलिक्यूल का। इसका बैड स्ट्रक्चर, इसका देखिए कितना टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर बना। हाउ ब्यूटीफुल, कितना कॉम्प्लेक्स है बट हाउ ब्यूटीफुल। बाहर से दिखने में एक जैसा है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर कितना फ़र्क है। तो इसका मतलब वो थॉट्स एक एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करके वाटर ने एब्जॉर्ब किया। दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग डे इन एंड डे आउट। वी आर रेडिएटिंग एनर्जी फ्रॉम आवर थॉट्स टू अदर्स, एंड नॉट जस्ट टू अदर्स, टू आवर सेल्स ऑल्सो। जब हम खुद को कुछ कहते हैं, हम खुद को अगर ब्लेम करते हैं बहुत ज़्यादा, गलती कर दी, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होता, आई एम अ बैड मदर, आई एम अ बैड डॉक्टर, आई एम अ बैड फादर, आई एम अ बैड सन, यू आर एक्चुअली कर्सिंग योर सेल्फ, यू आर मेकिंग योर सेल्फ बैड। वो करेक्ट करने का सही तरीका नहीं है। ठीक है, अगर कोई कमी है तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है वो आगे देखते हैं। ओके। अमेजिंग स्टोरी ऑफ अमेजॉन जंगल। अमेजॉन जंगल साउथ अमेरिका में है, उसकी अमेजिंग स्टोरी। जंगल में कौन होते हैं? द ट्राइब्स, आदिवासी, राइट। आपको पता है वहाँ पर उनको क्या, जब कोई पेड़ गिराना होता है तो व्हाट दे डू इज़, उसको टच भी नहीं करते। दे वुड जस्ट कलेक्ट अराउंड द ट्री एंड दे वुड हर्ल एब्यूजेस ऑन दैट ट्री। सिर्फ उसको बहुत सारी गालियाँ देते हैं, जो भी उनको गालियाँ आती हैं वो जब बहुत सारी गालियाँ उसको देते हैं। एंड 1 महीने बाद वो पेड़ खुद सूख के गिर जाता है। कैन यू बिलीव दैट? बड़ा पेड़, इतना बड़ा पेड़ सिर्फ टच करे बिना, ओनली बाय थॉट्स, एब्यूजेस, वो खुद सूख के गिर जाता है। दिस इज द पावर ऑफ योर थॉट्स। हाँ, थॉट्स आर ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस, दुआ और बद दुआ कहते हैं ना। हम कहते हैं कि जहाँ पर दुआ होती है वहाँ पर बंजर ज़मीन भी हरी भरी हो जाती है, और बद दुआ तो किसी की नहीं लेनी चाहिए, हरी भरी ज़मीन भी सूखी हो जाती है। हम पेशेंट्स को क्या बोलते हैं जब हमारी दवा से ठीक नहीं हो रहे होते हैं कि देखो हमने दवा की, आप दुआ करो, लेकिन हम सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, राइट? एक एस्केपिज्म, ये सबके लिए है, हम सब जानते हैं, हम सब ये वर्ड यूज़ करते हैं। हम दवा कर रहे हैं, आप दुआ करो, लेकिन उस दुआ का क्या इफ़ेक्ट है वो हमने समझा? बहुत पावर है, तभी तो ये शब्द बना, नहीं तो क्यों बनती है सेइंग? थॉट्स एनर्जी वेव्स के फॉर्म में पूरे यूनिवर्स में फैलती हैं। और इसका एग्जाम्पल कैसे? ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसमें इन लोगों का ऑरा मेजर किया गया, तो स्पेशल गामा कैमरा से जो उनके थॉट्स थे उनको बोला गया कि आप ये सोचिए, और वो इमोशंस कैप्चर किए गए, और डिपेंडिंग ऑन देयर इमोशंस अलग अलग कलर्स आए। और ये उनका फील्ड है, तो जहाँ जहाँ पे इमोशंस उनके कट थे वहाँ पर उनका एनर्जी फील्ड कम हो गया। ये एक्सपेरिमेंट, तो इससे बिल्कुल एपरेंट हो जाता है कि जिसको हम ऑरा कहते हैं वो पूरे एनर्जी फील्ड फैलता है, और उसको एक्सपेरिमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारा डेली का एक्सपीरियंस है। कैसे? कुछ लोग हमारे साथ में बैठते हैं, हम कहते हैं इनसे मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। कुछ लोग बैठते हैं, हम कहते हैं इनसे मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। होता है सबके साथ?
होता है ना। अब उस पर्सन ने तो कुछ नहीं बोला, आपको कौन सी वाइब्स आ गई, कैसे पता चला उससे अच्छी नहीं है। और साथ में अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा है, तो हम क्या कहते हैं, देखो ये ऊपर ऊपर से तो बहुत मीठा बोलता है लेकिन इसके अंदर कुछ और ही है। सेंस हो जाता है आपको। अब उस व्यक्ति ने तो नहीं बोला कि मेरे अंदर कुछ और चल रहा है, मैं ऊपर से कुछ और बोल रहा हूँ, राइट। लेकिन आपने कैसे सेंस किया। सेंस करने के लिए क्या 3 चीज़ें चाहिए, सिग्नल चाहिए और एंटीना चाहिए। एंटीना हमारे अंदर है, वो सिग्नल उसके थॉट्स भेज रहे हैं। इनफैक्ट अब आप खुद देखो कि वो जो बोल रहा है उसको आपने नहीं समझा, उसके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपने क्या समझा, उसकी वाइब्स को समझा। तो वाइब्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं जो आप बोलते हो। घर में भी कोई झूठ बोल रहा है तो मेन से ज़्यादा विमेन में थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है और सबको पता है कि वो पकड़ लेती हैं कुछ गड़बड़ है। तो हस्बैंड कितना भी झूठ बोले वाइफ पकड़ लेती है, जिसको सिक्स सेंस वो कहते हैं। यस, इट एग्जिस्ट, दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ आवर थॉट्स आर रेडिएटिंग। अब गॉड हैज़ गिवन देम अ बेटर एंटीना देन अस, तो ठीक है, दैट्स ओके। और ज़रूरत भी है, उनको घर चलाना है, राइट। तो थॉट्स हैव दिस एनर्जी विच स्प्रेड। ओके, तो हमने 2 चीज़ें अभी सीखी। पहला, खुश रहना है, ठीक है, खुश रह के हम अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं इजीली। अब बाहर की जो प्रॉब्लम्स हैं, दूसरा, वो कंडीशनिंग हमारी ऐसी हो चुकी है कि बाहर नेगेटिव है तो हम भी अंदर नेगेटिव हो जाते हैं। उसको अब हम डी कंडीशनिंग कर देंगे। नहीं, आई विल चूज़ टू रिमेन हैप्पी, बाहर कुछ भी हो, क्यों, क्योंकि उसमें मेरा ही फ़ायदा है। विद दिस अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट नेचुरल, इट्स नॉट दैट कि ये दोनों एक ही चीज़ें, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। लेकिन नेक्स्ट सवाल आता है, अभी तो आपने बता दिया, हमने सुन भी लिया, हमें बहुत अच्छा भी लगा, हम करेंगे भी, लेकिन आप 1 हफ्ते बाद वापस आओगे, आपने जो बताया था ना वो हुआ नहीं मुझसे। वो पेशेंट इतना ख़राब था ना, उसने इतनी बदतमीज़ी से बोला, मैं क्या करूं, मुझे स्ट्रेस होना ही था। वो इतना बड़ा मेरे सामने प्रॉब्लम आ गई कि मेरे सामने वो स्ट्रेस मुझे हुआ ही, मैं कंट्रोल कर ही नहीं पाया, क्योंकि बाहर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उसका इन्फ्लुएंस हम पर आएगा। आज हमने ठान लिया कि हम खुश रहेंगे। अब आसपास वाले तो हम जानते हैं, घर से पहले तो घर में ही शुरुआत हो जाती है, ठीक है। बच्चे को कौन तैयार करेगा, खाना कौन बनाएगा, तुमने मुझे लेट किया, तुम्हारी वजह से ये हुआ। फिर ऑफिस पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचे, उसने ये काम नहीं किया, ये काम नहीं हुआ, उस पेशेंट का ये नहीं हुआ, अरे उसको कॉल करना था। सिचुएशंस हमें हैप्पी रहने नहीं देती, क्या करें। जेन्युइन बात है, प्रैक्टिकल है, हमारे साथ तो ये हुआ, हम सारा एक्सपीरियंस अपना ही शेयर कर रहे हैं जो हमने एक्सपीरियंस किया। तो कैसे पॉजिटिव रहें, इतनी नेगेटिविटी है तो, ये सतयुग तो है नहीं, क्या पॉजिटिव रहो। हाँ, ब्रह्मा कुमारीज ने कह दिया तो पॉजिटिव रहो, लेकिन कैसे रहें पॉजिटिव वो तो बताओ। हाँ, सुनेंगे आगे। ओके, ब्रेन लाइब्रेरी। मेडिकल स्टूडेंट्स हम सब रहे हैं, हम हर कोई लाइब्रेरी में गए हैं, राइट। लाइब्रेरी में जब जाते थे तो मेडिकल बुक्स हम पढ़ते थे, लेकिन एक सेक्शन होता था जहाँ पर नॉन एकेडमिक बुक्स या फिक्शनल बुक्स होती थी, ठीक है। तो हमारा ध्यान किधर जाता था, हम जाते थे, कभी बोर होते थे तो उस तरफ चले जाते थे। लेकिन उसमें एक नुकसान होता था। क्या नुकसान होता था, हमारी पढ़ाई रह जाती थी, ठीक है। तो अभी मूवी देखने गए, मूवी में 3 घंटा निकल गया, बाद में याद आया, अरे कल तो एग्ज़ाम था, कल तो ये पढ़ना था या ये काम करना था, ठीक है। ब्रेन एक लाइब्रेरी है बिलीव्स की। जो भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे ब्रेन में स्टोर होता रहता है, ये तो हम सब जानते हैं, करेक्ट है।
माइंड क्या करता है, वो वहाँ पर जाता है, उस बुक में क्या लिखा है वो देखता है और उसके हिसाब से थॉट पैदा करता है। अब ध्यान से सुनना, हम अभी तक क्या जब भी प्रॉब्लम में आते हैं क्या कहते हैं, मेरा मन जो है ना वो कंट्रोल में नहीं है, राइट? बहुत वेस्ट थॉट्स क्रिएट करता है, बहुत नेगेटिव चलता है मन में। मन को एक कसूरवार ठहरा देते हैं कि ये मन जो है ना, ये दुष्ट मन मुझे बहुत नचाता है। करेक्ट है, ठीक है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं मम्मा मन नहीं है, मम्मा मन नहीं कर रहा है, मन के ऊपर ब्लेम डाल दिया, लेकिन मन की क्या रियल में गलती है या नहीं वो समझते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये देखो, आपने एक मूवी देखी आज रात को, हॉरर मूवी। रात को नींद में कैसे सपने आएंगे, कैसे विचार आएंगे? हॉरर वाले, करेक्ट है। लेकिन आज आप रात को एक अच्छा स्पिरिचुअल सॉन्ग सुन के सोए, तो क्या हॉरर सपने आएंगे आपको? क्यों? क्यों? मन है ना। तो मन ने जो हॉरर सपने या हॉरर व्यूज़ क्रिएट किए, वो किस बेसिस पर क्रिएट किए? जो हमने उसके अंदर फीड किया। वेरी गुड। तो मन केवल एक इंस्ट्रूमेंट बना, वो तो जो आपने फीड किया माइंड में, ब्रेन लाइब्रेरी में, उसको वो पढ़ता है और उसके सामने जो रखोगे वो प्रेजेंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जो रेडियोलॉजिस्ट होगा आप में से, उसके सामने एक CT MRI रखो, वो तुरंत बता देगा इसमें ये दिख रहा है, क्योंकि उसके मन में वो नॉलेज है। लेकिन एज अ न्यूरोलॉजिस्ट मैं नहीं बता सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा सामने दिख रहा हो। क्यों? क्योंकि मुझे वो उसकी नॉलेज नहीं है, राइट है। एक गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बता सकती, लेकिन गायनेकोलॉजी की चीज़ रेडियोलॉजिस्ट नहीं बता सकता। इसका मतलब जो हमारे ब्रेन में स्टोर नहीं है, वो माइंड थॉट वैसा क्रिएट कभी कर ही नहीं सकता। करेक्ट है, करेक्ट है। तो अगर माइंड मेरा वेस्ट थॉट्स क्रिएट कर रहा है, तो वो किस बेसिस पे कर रहा है? जो वेस्ट भरा हुआ है। अब वो वेस्ट किसने भरा? किसने भरा? हमारे सेंस ऑर्गन्स ने। अब हमारे सेंस ऑर्गन्स ने, लेकिन सेंस ऑर्गन्स किसके हैं? हमारे। तो अल्टीमेटली हमने जो माइंड में भरा वही मन उठाता है, वही करता है। अब जब हम वीडियो देखते हैं ना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने एक वीडियो देखा कि एक बच्चा है, वो बीमार है, और जो टीवी में दिखाया कि उसकी माँ बहुत रो रही है। वो डोनेशन के लिए एक वीडियो दिखाया, चलता है ना यूट्यूब्स में, कि डोनेशन चाहिए इलाज के लिए, बच्चे को कैंसर है और माँ के बहुत आंसू आ रहे हैं। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। क्या मैसेज है? बच्चा बीमार है तो बहुत दुख होता है, कंडीशनिंग हो गई, कंडीशनिंग हो गई। अब जब हमारा बच्चा बीमार होगा ना, तुरंत क्या रिस्पॉन्स आएगा, रिएक्शन आएगा? दुख होगा। बहुत डीप है, बहुत डीप है। आज हमने देखा, सड़क पे कोई जा रहा था, वीडियो देखा या सड़क पे जाते हुए देखा, एक व्यक्ति को सब लोग मार रहे हैं क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया। नेक्स्ट टाइम हम किसी को देखेंगे गलत काम करते हुए, तुरंत हमारे दिमाग में क्या उसका रिस्पॉन्स आएगा, रिएक्शन? इसको मारेंगे। आएगा तुरंत ये थॉट, आएगा। अब मैंने इसको चेंज कर दिया, इस पैटर्न को। अब मैं देखता हूँ ऐसा वीडियो कि एक बच्चा बीमार है, लेकिन एक नर्स विदाउट गेटिंग इमोशनल उसकी बहुत अच्छे से केयर कर रही है। बच्चे को बहुत बड़ा वूंड है, लेकिन नर्स उसकी केयर कर रही है बहुत अच्छे से। अब जब मेरा बच्चा बीमार होगा, मेरे दिमाग में क्या आएगा? केयर। मैं भी इसकी अच्छे से केयर करूं, बाय लर्निंग। है डीप, कंडीशनिंग हो गई। तो अब जो हम भर रहे हैं, माइंड की गलती नहीं है। माइंड को तो जो आप भरोगे वो वही उसी के बेसिस पे थॉट क्रिएट करेगा। तो अगर आपके अंदर वेस्ट और नेगेटिव थॉट ज़्यादा हैं, हमें नहीं पता, अगर हैं, इसका मतलब आपके अंदर का कंटेंट वेस्ट और नेगेटिव ज़्यादा है और आप वो फीड कर रहे हो, वो आप फीड कर रहे हो।
ये ब्रेन लाइब्रेरी किन चीज़ों से बनती है? जेनेटिक्स। हमारे ब्रेन के अंदर जो भी बुक्स हैं, बिलीव्स हैं, जिसके बेसिस पे थॉट्स क्रिएट होते हैं, एक तो हम परिवार से लेते हैं, भाई जो हमने बड़े होते हुए सीखा, तो उसके आधार पर हम एक थॉट क्रिएट करते हैं। जैसे हमने सुबह, हमारे घर में सब 5 बजे उठते थे, तो हमने शुरू से सीखा कि 5 बजे उठना है, तो हमारा माइंड हमेशा वो थॉट क्रिएट करता है कि 5 बजे उठना है। करेक्ट है ना? उसको आप चेंज कर सकते हो पेरेंट्स को? नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। एनवायरनमेंट, हमारे आसपास क्या हो रहा है, सब क्या चल रहा है, वो भी हमारे ब्रेन की लाइब्रेरी को बना रहा है, कंटेंट को बना रहा है। क्या उसको चेंज कर सकते हो? नहीं। अभी पीछे उन्होंने माइंड गेम खिलाया ना, वो माइंड गेम ये था, जो जल्दी जल्दी आंसर करते हैं ना, तो एक पैटर्न बन जाता है, तो पैटर्न बन के फिर हम वही करते हैं। तो अभी वही हो रहा है। तो पहले वाले का आंसर नो था, तो सेकंड वाले का आंसर भी नो हो गया। क्या एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत हम मॉडिफाई कर सकते हैं? यस। कैसे? कैसे कर सकते हैं? मोबाइल जो है, अभी जो हम कंटेंट देखते हैं, क्या उसके कंटेंट को हम चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन मन नहीं मानता ना। करेक्ट। अभी हम आगे देखेंगे कि मन को कंट्रोल कैसे करें। उसके लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए ना। क्या अपने आसपास के लोगों को, जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं, अगर नेगेटिव हैं, उनको चेंज कर सकते हैं? टू एन एक्सटेंट ये कर सकते हैं कि जो नेगेटिव हैं उससे हम लिमिटेड इंटरेक्शन रखें, अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रखें। इसीलिए स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज को अटेंड करना, यहाँ पर डेली क्लास को अटेंड करना एक यूज़फुल एक्ट होता है। टू एन एक्सटेंट हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रख सकते हैं। अपने घर में टीवी में हम स्पिरिचुअल चैनल्स चला सकते हैं, जिससे हमें वो इन्फॉर्मेशन मिले। एक्सपीरियंस से हम, हमारे बिलीव्स बनते हैं, और फाइनली जो भी हम पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं। तो अगर हम अच्छी नॉलेज लेते हैं, पहले हम भी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, उस पे जो भी आया पढ़ते थे, हर चीज़ पढ़ते थे। हमें लगता था ये तो मेरे नॉलेज डेटाबेस बढ़ा रहा है, लेकिन सिर्फ नॉलेज डेटाबेस नहीं बढ़ा रहा, वो मेरी शायद नेगेटिव कंडीशनिंग भी कर रहा है। करेक्ट? अब हमने उसको चेंज कर दिया। अब हम पॉजिटिव स्पिरिचुअल कंटेंट ही सुनते हैं और वही पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कैच है। आप कितना भी कर लो, कितना अवॉइड करोगे? बच्चे हैं, अब मोबाइल खोलते ही सबसे पहले वो एडवर्टीज़मेंट दिखते हैं, बाहर के लोग दिखाई देते हैं। अब आंख बंद करके तो नहीं रह सकते, अकेले तो नहीं रह सकते, रहना तो संसार में है। तो क्या करें? उनकी नेगेटिविटी, हमने पॉजिटिव भर भी लिया, चलो 1 घंटा भर भी लिया, बाकी 23 घंटे तो नेगेटिव। नींद तो नहीं आ रही है? पक्का? एक बार खड़े होकर थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी देर से बैठे हैं। जो करना चाहते हैं रोटेट सभी, ताकि थोड़ा अलर्ट होके सुनेंगे। देखो, ये तो ह्यूमन बॉडी है, हम सब जानते हैं, थक जाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि लेक्चर में इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि ठीक है, हम चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे। कंटिन्यू रखें या अब यहाँ पर रुकें? कंटिन्यू रखें, ठीक है। अब सिचुएशंस को हम नहीं बदल सकते, ठीक है। हमने भी अपनी लाइफ में देखा कि हमने 1-1.5 घंटा क्लास अटेंड किया, स्पिरिचुअल क्लास, मेडिटेशन सुबह किया, लेकिन बाकी 22 घंटे या 12 घंटे, 14 घंटे हम लोगों के बीच में रहते थे। और लोग भी छोड़ दो, डॉक्टर्स बहुत वल्नरेबल होते हैं। कैसे? जब पेशेंट्स आते हैं ना, हमारे न्यूरो फील्ड है हमारा, हम ब्रेन के ट्यूमर्स, बच्चों को मायोपैथी, न्यूरोपैथी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देखते हैं जो शायद ठीक नहीं भी हो सकती हैं। स्ट्रोक है, जो आपको पता है कि लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर्स हैं, एपिलेप्सी, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो एक पेरेंट के लिए ना, उसका बच्चे को वो प्रॉब्लम बढ़ते हुए देखना, अपाहिज होते हुए देखना सबसे बड़ा पेन होता है। वो देख रहा है कि मेरा बच्चा धीरे धीरे अपाहिज बन रहा है, वो चल नहीं पा रहा है, और उसको डॉक्टर ये कहे
कि आपका बच्चा धीरे धीरे व्हील चेयर में आ जाएगा और धीरे धीरे एक दिन बिल्कुल बेड पे आ जाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डुशीन्स, बैकर्स, हाँ, ऐसे पेरेंट्स को कितना पेन होता है। वो सिर्फ अपने साथ प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं लेके आते, वो सारा इमोशनल पेन भी लेकर आते हैं और वो आपको देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो बताता है ना तो उसमें वो पेन भी होता है और वो हम कंज्यूम करते हैं। और इसलिए फिर हमने देखा शाम तक आते आते हम इतना एग्जॉस्ट हो जाते थे, हमने कहा पूरे दिन तो बैठ के पेशेंट से तो देखें, बल्कि सेवा की है, फिर थक किस में गए? इतना थकान क्यों हो गई? क्यों इतना स्ट्रेस आ गया? कहाँ से आ गया? सुबह तो मेडिटेशन करके आए थे। फिर समझ में आया वो पेशेंट्स का पेन कंज्यूम कर रहे थे। वो आना ही है क्योंकि वो दे रहा है, ही इज गिविंग इट। सबके साथ होता है, इसीलिए डॉक्टर्स बहुत वल्नरेबल होते हैं। आपको पता ही होगा एवरेज ह्यूमन एक्सपेक्टेंसी से डॉक्टर्स की, इंडियन डॉक्टर्स की कम है एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पता है आपको ये बात? 10 ईयर्स हमारी एज कम है नॉर्मल एज से, और उसका कारण यही है क्योंकि वो बैगेज हमें बहुत मिलता है। हमने चुना ही ऐसा फील्ड है, इतना पेन हर फील्ड में। अब डॉक्टर के पास कोई हंसता खेलता तो आएगा नहीं, पेन में ही आएगा, तो वो पेन देता है। अब कैसे करें, क्या करें? ये एक मेजर क्वेश्चन था, अपनी जॉब है। तब समझ में आया गॉड ने एक बहुत अच्छा तरीका बनाया है, एक बहुत अच्छी हमें ब्यूटीफुल चीज़ दी है जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे हम इसे एस्केप कर सकते हैं। गॉड, हु इज़ गॉड टू अस? कहते हैं ना गॉड इज़ लाइक फादर, ओ लॉर्ड, ओ फादर। तो जैसे एक फादर अपने बच्चे की परवाह करता है, केयर करता है, तो गॉड भी हमारी परवाह करता है। बस हमें उसकी उंगली पकड़नी है। हमने वही साइंस के साथ किया, स्पिरिचुअलिटी को अपनाया। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ये बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ लोगों ने। बेस्ट सेलर बुक है वर्ल्ड की, नेपोलियन हिल ने लिखी ये बुक, ठीक है। इन्होंने इसमें एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक काउंसिल बनाई, इमेजिनरी काउंसिल। उसके अंदर उन्होंने अमेरिका के 9 इन्फ्लुएंशियल लोगों को रखा, जिनके नाम लिखे हुए हैं, और उन लोगों के साथ वो इमेजिनेशन में बातचीत करते थे कि आपने ये कैसे किया, आपने ये सक्सेस कैसे हासिल की, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, 3 महीने बाद वो क्वालिटीज़ उनको अपने अंदर खुद एक्सपीरियंस हुई। जो क्वालिटीज़ वो इमेजिन करते थे वो उसके अंदर खुद एक्सपीरियंस हुई। जैसे अभी आपने पीछे एक्सपेरिमेंट किया था, आप अपने घर गए, वो टेस्ट किया और आपको टेस्ट एक्सपीरियंस हुआ। इमेजिनेशन में ही तो किया, लेकिन आपको एक्सपीरियंस हुआ। तो वो क्वालिटीज़ उनको एक्सपीरियंस हुई। दूसरा, रॉबिन शर्मा की ये बुक है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें एक लाइन आती है, ये एक पैराग्राफ आता है, जिसमें वो एक उनका फ्रेंड उनको एक सजेस्ट करता है एक्सरसाइज करने को। उसमें वो क्या कहता है कि आप एक रोज़ को स्मेल करो और उसकी स्मेल को एक्सपीरियंस करो और लगातार करो। और उसमें इफ़ आई रीड दिस लाइन, तो वो क्या कहता है, if you have faith and believe in your dreams, you will eventually move beyond the thorns into the glory of the flower. Keep staring at the rose, savor its fragrance and think only about this wonderful object in front of you. जो उन्होंने भी आपको करवाया कि सिर्फ इसके बारे में सोचिए। उसके बाद क्या होगा, at first the other thoughts will enter your mind, but later on improvement will come quickly and soon your mind will grow strong and disciplined. मतलब जो हम सोचते हैं वो चीज़ हमें एक्सपीरियंस भी होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? मेडिटेशन में हम जो सोचते हैं, जैसे भी उन्होंने आपको बताया कि मेडिटेशन में अगर आप एक पॉजिटिव एफर्मेशन लोगे तो वो एफर्मेशन आपके ब्रेन के सर्किट को चेंज करता है, वो आपका रियल कैरेक्टर बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ अगर आप बैठकर सुबह अपने साथ ये रिपीट करते हो मन ही मन में, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम हैप्पी, जस्ट मन में रिपीट करते हो, वो आपके अंदर हैप्पीनेस, पीस, पावर आ जाती है। और ये इसका साइंटिफिक रीज़न है, वो है माइंड डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी। इस एक्सपेरिमेंट के साथ समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है।
आपको पता है डॉक्टर्स का काम ही क्या है साइंटिस्ट का? टू एक्सपेरिमेंट एंड टू प्रूव एंड डिसप्रूव। तो उन्होंने क्या किया, एक मंकी को लिया न्यूरो साइंटिस्ट ने, उसको एक बनाना दिया और बनाना खाते हुए उसकी ब्रेन की मैपिंग की और देखा कि उसके ब्रेन के कौन से एरियाज एक्टिवेट हो गए, ठीक है, फंक्शनल एमआरआई से चेक किया। अब उन्होंने क्या किया, एक और मंकी लिया, उसको बनाना खिलाया और फर्स्ट मंकी वॉज ओनली वॉचिंग एट दी अदर मंकी, और फिर जो वॉच कर रहा था उसका ब्रेन का स्कैन निकाला एंड दे वर सरप्राइज टू सी कि जब सिर्फ वो वॉच भी कर रहा था ना तो सेम ब्रेन के एरियाज एक्टिवेट हुए। इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जब आप सिर्फ एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व भी कर रहे हो, वॉच भी कर रहे हो या उसका एक विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो, तो वो वही काम करता है जैसे आप वो रियल में कर रहे हो, वो वही काम करता है जैसे आप रियल में कर रहे हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द रीज़न फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन। कैसे? आज किसी के साथ कोई हादसा हुआ, बाइक रोड एक्सीडेंट हो गया या किसी लव्ड वाज ने शरीर छोड़ा, अब वो व्यक्ति उसको बार बार ही अपने माइंड में सोचता है ऐसा हुआ, या किसी ने छोटी सी बात है, छोटी एज स्मॉल एज किसी ने किसी को डांट दिया, मेंटल अब्यूज़ किया, टॉर्चर किया, वो हो गया, लेकिन वो बार बार उसको रिक्रिएट कर रहा है अपने माइंड में, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। माइंड ब्रेन के लिए उसके लिए वही चीज़ एज इफ रियल में हुई है वो होगा, और वो वही उसका सर्किट रीइंफोर्स करता रहेगा। मतलब बाहर एक बार ही हुआ, लेकिन जितनी बारी आपने माइंड में उस चीज़ को इमेजिन किया वो ब्रेन के लिए वही वैसे ही है जैसे सामने हुआ हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम कोई नहीं चाहता कि हम डिप्रेशन में जाएं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जाएं, भूलना चाहते हैं, लेकिन हमने उस सर्किटरी को बहुत स्ट्रांग बनाया। लेकिन अगर हमें ये समझ में आ गया है तो अब हम जब सोचेंगे तो सोच कर सोचेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोचना भी वैसे ही है जैसे आप रियल में वो कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, अपने हस्बैंड पे, वाइफ पे, बच्चे पे, एम्प्लॉय पे, आपने बाहर से नहीं बोला, सिर्फ मन में किया, लेकिन एक्चुअली में इट इज़ इक्वलेंट टू आपने बाहर गुस्सा किया। समझ रहे हो? तो जो आप बाहर नहीं करते वो अंदर भी मत करो, बिकॉज वो दोनों ब्रेन के लिए तो एक ही बात है। हम कहते हैं ना, मैंने सामने से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में अगर चल रहा है तो इट इज़ इक्वलेंट। अब इसको हम उल्टा कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर हम एक नेगेटिव चीज़ को बार बार सोच के डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो क्या हम एक पॉजिटिव चीज़ को सोच सोच के पॉजिटिव नहीं हो सकते? प्रिंसिपल तो वही है, वही मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन में ऐसा नहीं है कि हम चुप होके बस साइलेंट हो जाते हैं। नो, मेडिटेशन में हम पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आना चाहते हैं। मेडिटेशन में पॉजिटिविटी कैसे आएगी? जब हम उस चीज़ को, वो पॉजिटिव चीज़ को बार बार अपने अंदर माइंड में रिपीट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर राजयोगा मेडिटेशन में कभी ऐसा नहीं सिखाते कि आप बिल्कुल चुप हो जाओ, बस वो तो साइलेंस है। अभी आप 1 मिनट के लिए साइलेंट हुए, पावर मिली, लेकिन उससे आपके अंदर जो क्वालिटी चाहते हो वो नहीं आएगी। वो तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए एस्केप हो गए, माइंड को साइलेंट कर दिया। लेकिन जो अगर पॉजिटिव क्वालिटी चाहते हो, अपने गुस्से को पीस में बदलना चाहते हो, वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना चाहते हो, सैडनेस को हैप्पीनेस में बदलना चाहते हो, तो उन वर्च्यूज़ को एक्टिवली आपको अपने माइंड में विजुलाइज करना होगा। और यही फ़ायदा हमें गॉड ने दिया। कैसे? अब बाहर कुछ भी चल रहा है, बाहर पेशेंट्स हैं, लेकिन मैं अपने माइंड में एनी टाइम कहीं पर भी बैठ के एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रिएटिव इमेजिनेशन। मैं कहीं पर भी बैठ के, मुझे बहुत पेन हो रहा है, लेकिन अगर मैं साइलेंट होकर सिर्फ एक हैप्पीनेस का अपने अंदर सोचता भी हूँ, तो वो जैसे बाहर हैप्पीनेस है, मेरे लिए वो इक्वलेंट है। समझ में आ रहा है? अगर मैं अपने माइंड में, आप यहाँ पर समझ लीजिए कि बहुत सैड एनवायरनमेंट है, लेकिन मेरे माइंड में मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं हैप्पी हूँ, तो मेरे लिए एक्चुअली में बाहर कुछ भी है वो इमैटेरियल हो गया, और मेरे लिए बाहर भी एज इफ हैप्पीनेस ही है।
बहुत डीप है ये। तो बाहर कुछ भी चल रहा है, लेकिन जो मेरे माइंड में चल रहा है एक्चुअली में वो मेरा वर्ल्ड है। तो बाहर कोई चिल्ला सकता है, कोई रो सकता है, कोई कितना भी शोर हो सकता है, बट अगर मेरे माइंड में मैंने अपने साइलेंस क्रिएट किया हुआ, विजुअलाइजेशन साइलेंस का है, तो मेरे लिए बाहर साइलेंस ही है। तो वर्ल्ड होके भी नहीं है। जो आपने कभी सुना होगा ना, ये सब मिथ्या है, ऐसा बोल देते हैं ना लोग, लेकिन उसका मीनिंग ये है, साइंटिफिक मीनिंग। हम लोग साइंटिफिक पीपल हैं, हमें साइंस समझ के उनको बताना है। वाई शुड दीज पीपल टीच अस? हम लोग साइंटिस्ट हैं, हम इन चीज़ों को समझ के साइंटिफिक माइंड से बताएं। यू ऑल बिकम टीचर्स, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स, स्पिरिचुअल प्लस मेडिसिन, व्हेन इट कंबाइंस इट कैन क्रिएट मैजिक, क्योंकि आपका वो एक साइंटिफिक माइंड है, आप समझ के करते हो। तो मिथ्या कैसे हो गया? बाहर कुछ भी चल रहा है, लेकिन अगर अपने माइंड को आपने उसके ऑपोजिट जो भी आप चाहते हो एक्सपीरियंस करना, वो माइंड में क्रिएट करो, बाहर की चीज़ इमटेरियल हो जाती है। अब मैं अपने पेशेंट्स को जब देखता हूँ तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड रहता हूँ, मुझे पता है कि वो पेन लेकर आएंगे, बट मैं पहले से ही प्रिपेयर हो जाता हूँ, अपने माइंड में क्रिएट करता हूँ थॉट कि जब वो पेन दे रहे होंगे तो मैं उनको यहाँ से ब्लेसिंग्स दूंगा कि इनका पेन कम हो जाए। तो वहाँ से पेन की फीलिंग आ रही है, रादर देन टेकिंग दैट पेन इन, उस पेन को मैं फील बिल्कुल नहीं करता हूँ। जैसे ही वो पेन दिखाई देता है, वो बोलते हैं, मैं इमीडिएटली उनको हीलिंग की वाइब्रेशन भेजता हूँ। इट्स ओके, आपका पेन ठीक हो जाए, इट्स ओके, प्रॉब्लम है, खुश होके सहन कर लीजिए, दैट्स ओके। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हैप्पीनेस ही ठीक है, हैप्पीनेस से ही फ़ायदा है। तो मुझे वो कंज्यूम भी नहीं होता है और मैं उनका डबल ट्रीटमेंट कर पाता हूँ। आई विल शेयर वन पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी 15 दिन पहले ही हमारे पास मथुरा के एक बड़े पुरोहित एडमिट हुए। मैं बस राउंड पर गया, मैंने उनको बस हाथ रखा उनके ऊपर, एंड उन्होंने क्या बोला, कहते कि जब आपने मेरे ऊपर हाथ रखा ना तो मुझे ऐसा लगा मेरी 50% बीमारी दूर हो गई। उनको ये नहीं पता कि मैं ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन करता हूँ या फिर मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता हूँ, उनको कुछ भी नहीं पता है। उनके लिए मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। सिर्फ एक हाथ रखा, उन्होंने कहा, मेरे को ऐसा लगा कि मेरी 50% बीमारी ठीक हो गई। क्यों? मेरी वाइब्रेशंस उनके लिए वो थी, इनकी बीमारी ठीक हो जाए, वो उन्होंने कैच कर ली, क्योंकि वो पुरोहित थे, लर्नेड पर्सन थे, कैच कर लिया। एक गर्ल आई, वो बाहर रो रही थी ओपीडी के बाहर, तो झगड़ा हो रहा था गार्ड से। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसको बुलाया गया, कहते सर ये आपसे मिलने नहीं देते, जूनियर डॉक्टर के पास भेज रहे थे मुझे। मैंने कहा देखो सबको तो नहीं देख सकते, कंसल्टेंट सबको कैसे देखेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो इसलिए चलो कोई बात नहीं, आप बताओ क्या हुआ, पेपर दिखाओ आपका। कहती पेपर तो है नहीं मेरे पास। मैंने कहा पेपर नहीं रहा हो? कहती नहीं। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहती कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्यों मिलना चाहते हो? कहती है सर वही तो मैं इनको कह रही थी, मैं बस सर की एक स्माइल देखना चाहती हूँ, सर की स्माइल से मेरा दिन बन जाए। मैं तो दिस इज द पावर विच वी हैव फॉरगॉटन। हम दवाई तो देते हैं, अच्छा डॉक्टर जो दोनों चीज़ करता है उसका डबल ट्रीटमेंट काम करता है। और ये जो क्रिएटिव इमेजिनेशन की पावर है ना, विजुअलाइज करने की, ताकि हम बाहर की नेगेटिविटी को डॉज कर सकें। बाहर कुछ भी चल रहा है, आज यहाँ पर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अगर मैंने अपने माइंड में विजुअलाइज कर लिया कि मुझे ये इस फीलिंग में रहना है, तो बाहर कुछ भी हो वो मुझ पर असर डाल नहीं सकता। और वो योगी की स्टेट होती है। एक्चुअली योगी कुछ नहीं है, योगी जो दिखाते हैं ना आंख बंद करके, आंख बंद करने का मतलब ये है कि वो अपने अंदर का वर्ल्ड उसने खुद बनाया हुआ है, वो बाहर के वर्ल्ड से अफेक्ट नहीं हो रहा है। दैट इज़ अ सिंपल मीनिंग। आइज़ क्लोज करने का मतलब ये नहीं है। तो यहाँ पर हम आइज़ क्लोज करना भी नहीं बोलते। यहाँ पर आप सुनोगे मेडिटेशन तो आइज़ क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं है। विजुअलाइजेशन तो आँख खोल के भी कर सकते हो ना, जिसको कहते हैं कि दिन में ख्वाब देखना। अच्छा ये बताइए, कभी आपने सुना है कि किसी बिल्ली को ख्वाब आया, ख्याल आया, या कुत्ते ने ख्याल किया? ख्याल किसको आता है? इंसानों को आता है। और वही क्योंकि हमारे अंदर ये इमेजिनरी न्यूरॉन सिस्टम्स होते हैं इमेजिनेशन करने के। कभी बिल्ली ख्याल नहीं करती, ठीक है? इसीलिए हम हाईएस्ट स्पीशीज़ हैं, हमारे पास वो पावर है। हम ब्लेम डालते हैं बाहर नेगेटिविटी, लेकिन भगवान ने हमें इतनी अच्छी पावर दी है कि अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन से अपना वर्ल्ड हम खुद बना सकते हैं, बाहर कुछ भी हो, इमटेरियल है मेरे लिए।
आई एम द पावर, आई एम द इंचार्ज ऑफ माई ओन वर्ल्ड। अब बाहर की नेगेटिविटी मुझे कुछ हाथ लगा के दिखाए। तो हर टूल दिया है हमें गॉड ने। पहला, हम चूज़ करें कि हम किन लोगों से मिल रहे हैं, किन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब उसमें भी अगर हमारे पास वो चॉइस नहीं आती है, कहीं पे हम लिमिटेड हो जाते हैं कि नेगेटिविटी तो है ही है, तो हम चूज़ करेंगे अपने एनवायरनमेंट को अंदर प्योर रखेंगे, बाहर की नेगेटिविटी हम पर असर डाल नहीं सकती। चलें आगे। अब द फाइनल क्वेश्चन, चलो ये भी समझ में आ गया, आपने बता दिया ख्याल ऐसा करो, पॉजिटिव रखो अपने माइंड को, लेकिन माइंड सुनता कहाँ है, उसको मैंने कहा, ये हमारे साथ भी हुआ। समझ में आया कि भाई पॉजिटिव रखो अपने माइंड को, पॉजिटिव विजुलाइज करो, लेकिन ना माइंड फिर बार बार इधर उधर भागता है। मेरे को जिसने कहा था ना, मैंने अपने माइंड को कहा नहीं उसके बारे में मत सोचो, जैसे भी वो था ना सफ़ेद भालू के बारे में मत सोचो, लेकिन माइंड किधर जा रहा था? तो आपने तो बता दिया कि विजुलाइज अच्छा करो, लेकिन वो भी विजुलाइज नहीं होता है, वो मन उधर उधर भागता है। मन उधर उधर भागता है, मन सबसे शरारती बच्चा है ना। अब उसको कभी तो कंट्रोल करवाओ ना, हमें सोचना भी सिखाओ कि कैसे सोचना है पॉजिटिव, विजुलाइजेशन भी पॉजिटिव करवाओ, वो भी करवा देंगे, गॉड ने सब रास्ते दिए। हाँ, तो माइंड को कैसे थिंक कौन करता है, कौन सोचता है? मन, करेक्ट है, मन सोचता है। लेकिन मन किसके बिना नहीं सोच सकता? कॉन्शियसनेस। ये टेबल है, मैं हूँ, मैं सोच सकता हूँ, ये नहीं सोच सकता। क्या फ़र्क है? इसमें भी एलिमेंट्स हैं, जो हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं ना, ईयर, अर्थ, वाटर, एयर, हर चीज़ उसी के मिक्सचर से बनी हुई है, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में। हम जानते हैं सभी में इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हैं, लेकिन कॉम्पोजिशन अलग अलग है। तो हम ये बन गए, ये टेबल रह गई, ये वेजिटेबल हो गया। और जब डेड हो जाते हैं तो कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है ना। और ये जो बॉडी है, ह्यूमस है, वो मिट्टी में मिल जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इसमें और हम में इतना ही फ़र्क है कि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, ठीक है ना। तो कॉन्शियसनेस माइंड के लिए ज़रूरी है, सोचने के लिए, जिसको हम लाइवलीनेस भी कह सकते हैं। अब हमसे एक डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस हम कर रहे थे, उसमें किसी ने सवाल किया, सर आप प्रूव करो कि कॉन्शियसनेस होती है। सोल, जिसको आध्यात्मिक भाषा में सोल कहते हैं, हमारी मेडिकल लैंग्वेज में उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। आप प्रूव करो कि आत्मा होती है। आप डॉक्टर हो के ऐसी बातें करते हो, आत्मा परमात्मा, आप तो न्यूरोलॉजिस्ट हो, बड़े डॉक्टर हो, ये आत्मा परमात्मा के चक्कर में कहाँ से फंस गए आप भी फंस गए ना, फंस गए यहाँ के। तो हमने कहा, देखिए जनाब, जो आप बोल रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो, इजंट इट द प्रूफ कि आप कॉन्शियस हो? अगर आपके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, सोल नहीं है, तो क्या आप सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं? जैसे एक डेड बॉडी होती है, कहते हैं नहीं, डेड बॉडी तो नहीं देख सकती क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। तो मैंने कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। चीनी मीठी है, मिठास क्या दिखा सकते हो आप? लेकिन कोई आपसे कहे कि चीनी कड़वी होती है, आप मानोगे? नहीं मानूंगा। तो फिर ऐसे ही जब एक इंसान बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, तो हमें पता है ना कि बॉडी के अंदर एक कॉन्शियसनेस है, तभी तो सुन देख बोल रहा है। सिर्फ बॉडी तो ऐसा कर नहीं सकती, डेड बॉडी। अब हम सभी ने पोस्टमार्टम भी देखे हुए हैं फॉरेंसिक में, हमें सब पता है, ब्रेन, लंग्स, लिवर, किडनी सब कुछ होता है। कोई कॉमन पर्सन बोले तो हमें समझ में आता है, लेकिन हमें तो पता है सब ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि वो एक सटल चीज़ है, कॉन्शियसनेस, वो एनर्जी है, वो नहीं होती है उसके अंदर। करेक्ट है। तो द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स टेस्ट, वो तो सामने है आपके। कहते हैं हाँ, तो इसलिए आत्मा परमात्मा कोई सुपर नेचुरल चीज़ें नहीं है, वो है ही है। तो वही चीज़ स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सोल है। और ब्रेन क्या है? ब्रेन वो सोल, जो एनर्जी है। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो हम जानते हैं। तो वो बॉडी को कैसे कंट्रोल करेगी सोल, कॉन्शियसनेस? थ्रू माइंड, ब्रेन। तो ब्रेन वो मास्टर ऑर्गन है। इन अदर वर्ड्स, कॉन्शियसनेस जो सोल है, वो अपने आप को कैसे, अब वो सोल है, सोल को एक माध्यम चाहिए अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान है समझना आत्मा का ज्ञान।
ये एक वायर है जो ऊपर ट्यूब में जा रही है या फैन में जा रही है, करेक्ट है। अब इसमें करंट ना हो तो क्या ट्यूब जलेगी? नहीं। और अगर वायर ना हो, सिर्फ करंट हो, तो जल सकती है, राइट। तो करंट के साथ वायर होना ज़रूरी है। ऐसे ही सोल वो करंट है, एनर्जी है, और वायर क्या है? बॉडी है। इसीलिए जब वायर में करंट नहीं होता हम क्या कहते हैं? डेड वायर। और जब करंट होता है क्या कहते हैं? हाथ मत लगाना, ये लाइव वायर है। ऐसे ही ये लाइव बॉडी और डेड, तो वो एनर्जी क्या है? वही सोल है। इजी है। लेकिन सोल बिना, जैसे करंट बिना वायर के काम नहीं कर सकता, ऐसे ही बिना बॉडी के सोल काम। हमने बॉडी को ट्रीट करना तो सीख लिया, लेकिन सोल को ध्यान नहीं दिया। दोनों ज़रूरी है ना। आज हम यही सीखने आए हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े। 5-10 मिनट हैं आपके पास, या स्टॉप करें यहाँ? जब आप कहेंगे स्टॉप करेंगे, क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज संडे है, आप देख लीजिए जैसे आपको ठीक लगे। कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे चेयरपर्सन्स क्या कहते हैं, करें? ओके, विद द परमिशन ऑफ द चेयर हम 5-10 मिनट और करेंगे, देन विल स्टॉप एंड टेक योर क्वेश्चंस। आई एम श्योर, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है, यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। कॉन्शियसनेस। अब सोल वर्ड अगर बोलने में शर्म आए, लगे कि कौन सी आत्मा बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टर्म यूज़ कर देते हैं, कॉन्शियसनेस। जैसे आपको पता है, पहले हम बोलते थे साइकोजेनिक सीजर्स, अब साइकोजेनिक वर्ड नहीं बोलते, क्योंकि मेडिकल फ्रेटर्निटी ने कहा ये बहुत डेरोगेटरी टर्म है, नेगेटिव टर्म है। किसी को आप साइको बोल रहे हो, पागल है क्या वो? नो, हम उसको अब टर्म यूज़ करते हैं फंक्शनल सीजर्स, फंक्शनल वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल पेन, फंक्शनल पैरापरेसिस, फंक्शनल चेस्ट पेन, अब साइकोजेनिक वर्ड यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे ही सोल को हम कॉन्शियसनेस एक फैंसी टर्म बोल दिया। क्या सभी के अंदर वो जो लाइवलीनेस है सबके अंदर है? ये तो पता है, नॉन लिविंग में नहीं है, लिविंग में सबके अंदर है, ठीक है। क्या वो सेम है या अलग अलग है? कैसे बताना पड़ेगा फिर आंसर, कैसे अलग अलग है और कैसे सेम है? भाई जिंदा तो सभी है ना, तो कॉन्शियसनेस तो सभी के अंदर है, अलग अलग कैसे है वो? वेरी गुड, बहुत होशियार है। लेकिन आंसर यहाँ से आ रहे हैं सारे, देख लो। हमें याद है, जस्ट शेयर करते हैं क्योंकि आप अपने ही लोग हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी हैं। हम अपने कॉलेज के टॉपर थे, लेकिन डिस्क्लेमर है उसमें, बॉयज़ के टॉपर्स थे। 2 लड़कियाँ 2 गर्ल्स हमसे आगे थी। कारण क्या था? गर्ल्स ऑब्वियसली स्मार्ट होती है, उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। तो वो जब पेपर आंसर शीट लिखते थे तो अंडरलाइन करना और डायग्राम बनाना, ये स्पेशलिटी होती है, वो भी क्वालिटी है। तो एग्जैक्टली, तो हम सभी कॉन्शियसनेस हैं। तो यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल भी दिया, तो कॉन्शियसनेस जैसे क्वालिटी होती है, क्वालिटी का भी अपना एक महत्व है। तो हम कॉन्शियसनेस प्लांट्स में भी है, जिंदा वो भी होते हैं, हम जानते हैं, लिविंग होते हैं। एनिमल्स में भी है, हम में भी है। लेकिन फ़र्क क्या है? हम कहते हैं हम हायर कॉन्शियस बीइंग्स हैं, कहते हैं ना, वी आर हायर कॉन्शियसनेस बीइंग्स। क्यों हायर, कैसे? तो कॉन्शियसनेस में सिर्फ एक अवेकन, अराउजल रिस्पॉन्स कि हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, उतना ही काफ़ी नहीं है, वो तो जानवर भी। कंटेंट क्या है, उस पर भी कॉन्शियसनेस की क्वालिटी डिपेंड करती है। तो आपका माइंड सेट, इंटेलेक्ट कैसा है आपका, आपकी जजमेंट पावर कितनी अच्छी है, तभी तो हम कहते हैं ये हाई क्वालिटी कॉन्शियसनेस है। हम उस लेक्चर में नहीं जाएंगे क्योंकि वो पिछले बारे में आपको बता दिया है कि हम एक कॉन्शियसनेस हैं, बॉडी नहीं है। वो तो आपने देख लिया था यहाँ, वो ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये मेरा हाथ है, ये मेरी बॉडी है, मैं कॉन्शियसनेस हूँ। तो कॉन्शियसनेस, मेरी क्वालिटी कैसी है कॉन्शियसनेस की, वो अलग अलग होगी, करेक्ट है। अब हम क्या चाहते हैं, हम शर्ट खरीदने जाएंगे, पैंट खरीदने जाएंगे, एक जगह सियाराम रेमंड का मिल रहा है, एक जगह लोकल मिल रहा है, किसको प्रेफर करोगे आप? करेक्ट, लोकल को तो नहीं करोगे। ऐसे ही हर कोई किसको पसंद करेगा, एक हाई क्वालिटी कॉन्शियसनेस को या लो क्वालिटी को? अब हम कपड़े तो बहुत अच्छे अच्छे पहन के जाते हैं, जब सुबह रेडी होके जाते हैं ना,
तो देखो, अरे क्या ड्रेसअप होके आते हैं डॉक्टर्स, अच्छे से मेकअप होता है। ऐसा नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में हम देखते हैं बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके आते हैं, तैयार होते हैं ना, बाल बनाएंगे, शेव करेंगे, अच्छे से ड्रेसअप। आज सब यहाँ पर आए तो अच्छे से ड्रेसअप होके आए। ये थे बॉडी की ड्रेसिंग अप, हाई क्वालिटी कपड़े, वेरी गुड, बहुत अच्छा सूट पहना है, बहुत अच्छी आपने सूट, आपने साड़ी पहनी है, राइट। लेकिन अंदर की क्वालिटी का क्या? हमारे साथ एक बॉडी है और एक अंदर कॉन्शियसनेस है, क्या उसकी क्वालिटी को भी हमने हाई क्वालिटी रखा? क्या वो क्वालिटी भी रेमंड और सियाराम की है? क्या वो है? इसीलिए कहते हैं ना कि ऊपर से तो बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही मुंह खोला असलियत सामने आ गई। एक पेशेंट आता है, उसको चिल्लाने का हक है, वो रोता है, पीटता है, कई बार गुस्सा भी करता है, लोग उसके ऊपर उंगली नहीं उठाते। लेकिन वहीं पर अगर डॉक्टर चिल्लाने लगे ना, डॉक्टर मिसबिहेव करने लगे, तुरंत सारी उंगलियां डॉक्टर के ऊपर हो जाती हैं, सारे प्रेस वाले आ जाएंगे। वाई? बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू बी द एलीट क्लास, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी द एलीट क्लास। इसलिए तो हम अच्छे से ऐसे ही थोड़ा ना कपड़े, कोई बरमुडाज में, पायजामाज में ऐसे ही उठ के आ गए। पेशेंट्स तो आ जाते हैं, चप्पल में भी आ जाते हैं, हम थोड़ी ना जाते हैं ऐसे, बिकॉज वी आर द एलीट क्लास। तो हमें सिर्फ बाहर से एलीट नहीं बनना, अंदर से भी एलीट बनना है। अभी तक हमने बॉडी का बहुत ध्यान रखा, हमने भी रखा, लेकिन जब से हमें समझ में आया कि बॉडी के साथ साथ एक कॉन्शियसनेस भी है, जिसको उसको भी मुझे एलीट बनाना है, तभी आई विल बी अ कंप्लीट एलीट क्लास। तब हमने अपने संस्कारों पर काम करना शुरू किया और एक कॉन्शियसनेस जो हमारे माइंड में है, ब्रेन है, इसको प्योरीफाई करना शुरू किया। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, फिर हम आगे क्लोज करेंगे। कॉन्शियसनेस जो है हमारी, क्या वो सबके अंदर जो है कॉन्शियसनेस, वो इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेन है? कहने का मतलब, अगर जैसे ब्रेन डेड हो गया, कोई डेथ हो गई, तो वो कॉन्शियसनेस भी ख़त्म हो जाती है या वो रहती है? कहाँ रहती है? जंगलों में? कहाँ जाती है? विक्रम बेताल के पास? भूत प्रेत बन जाती है? क्या होता है उसका? इन अदर वर्ड्स, आप कैसे कहोगे, कैन यू से दैट कि अगर ब्रेन नहीं भी है तो भी कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट कर सकती है? मतलब आत्मा बिना शरीर के हो सकती है। शरीर खत्म हुआ तो उसके साथ उसकी कॉन्शियसनेस, आत्मा भी वहीं देयर एंड देयर, उसका भी राम नाम सत्य हो गया, या वो रहती है? क्रिश्चियनिटी में मानते हैं कि वहीं पर सब कुछ खत्म हो जाता है, हिंदुइज्म में मानते हैं कि नहीं, आत्मा रहती है। लेकिन साइंटिफिक प्रूफ क्या है? वो है हमारे पास। कैसे कॉन्शियसनेस ख़त्म नहीं होती, ट्रांसफ़र होती है बाय चाइल्ड प्रोडिजी। आपको पता है गूगल बॉय, हिंदुस्तान का गूगल बॉय, जिसने बहुत कारनामे दिखाए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, पियानो, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स में वो महारथी थे। बाय बर्थ कैसे वो हो गए? कहीं ना कहीं उनके पास वो पहले से वो क्वालिटीज़ थी। हमने देखा ना, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस वो ट्रांसफ़र हो गई नेक्स्ट बर्थ में, राइट। दूसरा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उसमें क्या करते हैं कि हम पुराने कंटेंट को रिवाइव करते हैं। तो अगर पुराना कहीं था और वो नए बॉडी से रिग्रेस हम देख पा रहे हैं पुराना, तो इसका मतलब वो ट्रांसफ़र हुआ होगा, तभी तो हम पुराना देख पा रहे हैं। तीसरा, पास्ट लाइफ मेमोरीज। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिखाया, एक सेलर था, जब वो बच्चा हुआ तो उसने शेयर किया कि मैं पिछले जन्म में सेलर था। तो इसका मतलब बॉडी तो ख़त्म हो गई थी उस सेलर की, लेकिन वो कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र हो गई। तो आत्मा अमर है। अब नहीं बोलना डॉक्टर्स की आत्मा हमें नहीं पता क्या है, अब आपको पता है। नाउ यू आर इवन मोर लर्नेड देन दोज योगीज। कहते हैं ना, आत्मा को जान लिया, सब कुछ जान लिया। और आपने देखो 1 घंटे के सेशन में आत्मा को आसानी से जान लिया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हम एक कॉन्शियसनेस हैं जो इस दुनिया में आए हैं इस फिजिकल बॉडी के थ्रू अपना पार्ट प्ले करने। कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र हो सकती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और इट्स द टाइम टू करेक्ट आवर मिस्टेक फ्रॉम बीइंग बॉडी कॉन्शियस। सब चीज़ बॉडी फोकस था, टू नाउ सोल कॉन्शियस। सोल पर हमें ध्यान देना है। और अब अगर हमने अपने आप को सोल समझा
तो हम उन वर्च्यूज़ पर ध्यान देंगे, क्योंकि अभी तक बॉडी समझा तो हम बॉडी के जो कंफर्ट्स हैं, क्या अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, ये सब पे ध्यान दिया। लेकिन अब हमने सोल भी समझा, तो सोल के जो वर्च्यूज़ हैं, और सोल के क्या वर्च्यूज़ हैं, ये वो 7 वर्च्यूज़ हैं, सतो गुण बोलते हैं जिनको। 7 का बहुत बड़ा महत्व है। 7 जो है ना, 7 नंबर का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत बड़ा महत्व है। अब देखो कितने दिन होते हैं एक हफ्ते में, 7 सोमवार करते हैं लेडीज़, करते हैं ना। 7 गुण होते हैं, सतो गुण होते हैं, सप्त ऋषि होते हैं। सप्त ऋषि एक्चुअली वही है, वो गुणों का सिंबॉलिक है। वो सारे डिटेल्स जैसे जैसे आप अगर ये ज्ञान लेते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जब हमने ये पढ़ना शुरू किया ना, ये ज्ञान लिया राजयोगा का, पहले नॉलेज है फिर मेडिटेशन, तो हमें इतना अच्छा लगा। हमारे जो हम समझते थे, जो अभी तक हमें बचपन से सुनते आए, वो क्लियर हो गए कि ये क्यों है, कैसे है। तो ये जो 7 वर्च्यूज़ हैं, फिर हम इनको ध्यान देते हैं, राइट। तो द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब फैसला। फैसला क्या है? द वर्डिक्ट इज कि जो सोल है दैट इज द प्लेयर, एक्चुअली में वही प्लेयर है, और वो माइंड की कंट्रोलर है। बॉडी का कंट्रोल कौन है? ब्रेन। ब्रेन को चला कौन रहा है? हमारा मन। लेकिन मन के ऊपर कौन है? सोल। और सोल के ऊपर कौन है? सुप्रीम सोल। वेरी गुड, गॉड। ये साइकिल है। तो गॉड से पावर लेकर सोल रिचार्ज होती है, सोल रिचार्ज होकर माइंड को कंट्रोल करती है, और मन जीते तो जगत जीते, और फिर हमारे सभी एक्शंस अच्छे होते हैं। और एक्शंस अच्छे होंगे, एज यू सो शैल यू रीप। जो आप करोगे वो मिलेगा, लॉ ऑफ कर्मा कहता है, ठीक है ना। तो एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। तो आगे से ये नहीं कहना स्ट्रेस तो होता ही है, एंग्जाइटी तो होती ही है, ये नेचुरल कंडीशनिंग जो हमने कर दिया है, इसको ब्रेक करना है। हम खुश कहते हैं, हमें को खुश रहना है, और क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रेस को। मतलब जाना मुझे नॉर्थ पोल है, और अपने कदम में बढ़ा रहा हूँ साउथ पोल। इससे महामूर्खता क्या होगी? लेकिन हम डॉक्टर्स ऐसे मूर्ख नहीं है ना। हम तो, डॉक्टर का मतलब क्या होता है? डॉक्टरे जो वर्ड आया ना, लैटिन वर्ड है टू टीच। तो आप सबको ये टीचर बनना है। यू हैव टू टेक अ प्लेज विद मी, क्योंकि आपने डॉक्टर प्रोफेशन लिया है। डॉक्टर का मतलब सिर्फ फिजिकल डिजीज को ठीक करना नहीं है। डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, जॉब नहीं करता। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है। डॉक्टर इज़ अ टीचर, होलिस्टिक टीचर। तो उसको केवल फिजिकल डिजीज़ ठीक नहीं करनी, उसको मेंटल डिजीज़ भी ठीक करनी है, जो आज इतनी रैम्पेंट हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया बहुत ज़्यादा है, और ये बीमारियों ने हम डॉक्टर्स को भी कहीं ना कहीं असर डाल दिया है। तो पहले खुद की हीलिंग करेंगे हम, राजयोगा मेडिटेशन सीख के, नॉलेज लेके मेडिटेशन सीख के, और खुद हीलिंग करके हीलर बनेंगे, और फिर मैजिकल क्योर दे पाओगे अपने पेशेंट्स को। सिर्फ फिजिकल डिजीज़ उनकी नहीं ठीक करोगे, ओवरऑल उनको ठीक करोगे। सो विद दिस I would like to share this beautiful quote from a Western scientist, René Descartes. He lived in 16th century, and what he said, see, हम कहते हैं अध्यात्म भारत में, लेकिन आप देखो वेस्टर्न फिलोसोफर क्या कहते हैं। On the one hand, I have a clear and distinct idea of myself, given that I am only a thinking thing. मैं केवल एक सोचने वाली शक्ति हूँ, and not an extensive one. On the other hand, I have a different idea of the body, given that it is only an extensive thing. ये केवल एक विस्तार है बॉडी, and not a thinking one. ये बॉडी नहीं सोच रही है. Thus it is true that I, that is my soul. यहाँ पर वो थोड़ा गलत है, my soul नहीं, I the soul. My soul नहीं, I the soul. Through which I am what I am. सोल के जो कैरेक्टर्स हैं, कॉन्शियसनेस की जो कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंगली वो है जो है, इज एंटायरली एंड ट्रूली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी. बॉडी केवल एक माध्यम है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है कॉन्शियसनेस को मैनिफेस्ट करने के लिए, एंड इट कैन और एग्जिस्ट विदाउट इट. हाउ ब्यूटिफुल इट इज. सो फ्रेंड्स, कलीग्स,
चेयरपर्सन्स, बी सोल कॉन्शियस। आज से हम जब भी मिरर में देखेंगे, हम सिर्फ इस बॉडी को नहीं देखेंगे, विजुलाइज करेंगे कि एक सोल भी अंदर है, उसकी कॉग्निशन को, उसको एक्नॉलेज करेंगे कि अंदर एक सोल भी है। ठीक है। इम्बाइब गॉडली इंप्रेशंस, जो हाईएस्ट क्वालिटीज़ हैं वो गॉड के इंप्रेशंस हैं। जितने भी हम हनुमान जी, सरस्वती, कहते हैं ना गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती, तो नॉलेज को उन्होंने एक्वायर किया एंड शी बिकेम द गॉडेस। अगर हम इन वर्च्यूज़ को एक्वायर कर लें तो वी कैन ऑल्सो बिकम गॉड लाइक। तो दीज आर गॉडली इंप्रेशंस एंड वंस यू इम्बाइब दोज, यू लिव लाइक अ केयर फ्री एम्परर, बेफिक्र बादशाह। हु डज नॉट वॉन्ट टू लिव लाइक अ किंग? एंड वॉट काइंड ऑफ किंग? आजकल के किंग जैसे नहीं, आजकल के जो लीडर्स हैं टेंशन बहुत है ना? अ केयरफुल किंग। तभी तो लाइफ जीने का मज़ा है। लाइफ इज इंडीड ब्यूटिफुल, द ओनली कंडीशन इज वी नो हाउ टू लिव इट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे मेन जो हैं या जो हमारे मेल काउंटर पार्ट हैं, उनको एडवांटेज है, उनको गाड़ी चलाना आता है, राइट? तो हाईवे पर गाड़ी चलाना एंजॉय करते हैं। अब वही गाड़ी जिनको हमारे जो लेडीज़ हैं, हमारे मैडम हैं, उनको दे दी जाए, वो कैसे चलाएंगे? अरे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, अभी कैसे, अभी कैसे? मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में? नहीं आएगा। क्यों? मज़ा क्यों नहीं आ रहा है आपको? क्योंकि आपको चलानी आती नहीं। लेकिन एक बार अगर आप सीख लो तो कितना मज़ा आता है। ऐसे ही लाइफ को हमने जीना सीखा ही नहीं है। हमने बॉडी की साइंस तो पढ़ ली, लेकिन सोल एक्चुअली में जो हम रियल सेल्फ हैं उसकी साइंस को हमने नहीं जाना। एंड राज योगा माइंड इट, बिलीव मी, इट्स दी साइंस। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपने अपने जीवन में अच्छा काम तो किया, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रीशियस हिस्सा मिस कर दिया। विद दिस आई थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। धन्यवाद। Thank you so much, sir. If there are any questions, we can take it now. Sir, पूछना है? Consciousness is a soul. Consciousness Is a soul. is soul. As per this Raj Yoga, this thing. As per the true fact, not per as Raj Yoga. Consciousness Yes. is a medical Yes. terminology. Soul is a spiritual term. But you say that it is the consciousness or the soul is transferred to the other body. But in medical science, there is a genetic transfer. Genetic transfer is that पहले जो आदमी का बिहेवियर है वो इट मे बी अ गुड और इट मे बी डिस्ट्रक्टिव, दैट ट्रांसफर इन द अदर जनरेशंस, दैट इज अ जेनेटिक ट्रांसफर्स. इन दैट वे, सपोज इज वन इज अ पेंटर और वन इज अ साइकोलॉजिस्ट, one is some criminal, the same manners the genetically that gets transferred. Right. But there is a environmental these things. The environment में क्या होता है, environmental जो चीज़ें हैं वो आदमी को थोड़ा चेंज कर सकती है. Correct. So I got your point, sir. Genetics इसका कॉन्ट्रडिक्टरी है. सर का कहना है कि अभी हमारे बच्चे जो हैं उनको हमने जीन्स ट्रांसफ़र किया, तो अगर सोल ट्रांसफ़र हो रही है तो वो सोल के अपने एट्रीब्यूट्स आने चाहिए. जेनेटिक्स कैसे आ गया उसके अंदर, राइट? अब इसका आंसर देखिए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी उतना ही अच्छा है. एक बच्चा है, वो पैदा हुआ अंबानी के घर में, और एक बच्चा पैदा हुआ एक रिक्शा पुलर के घर में. करेक्ट? ठीक है. किस बेसिस पर?
किस बेसिस पर? उनके पास्ट कार्मिक अकाउंट, हम बोलते हैं कि इनके पास्ट कार्मिक अकाउंट थे। किसके अकाउंट थे? वो सोल या कॉन्शियसनेस के अकाउंट थे, जिसके बेसिस पर उसको वहाँ पर जन्म मिला। अब जेनेटिक्स कैसे हुआ? जेनेटिक्स ऐसे हुआ, मैंने अगर अच्छे काम नहीं किए हैं और जो ऐसा मेरा नेचर होगा, मान लीजिए मेरा नेचर है गुस्सा करने वाला, तो मैं किस फादर के यहाँ बॉर्न होऊंगा? जो गुस्सा करता होगा। तो इट सीम्स कि दोनों का कैरेक्टर सेम हो गया। तो ऐसा लगता है, इट सीम्स एज इफ आई हैव इनहेरिटेड दैट एंगर फ्रॉम माई फादर, बट नो, माई कैरेक्टर इज सिमिलर टू हिज, दैट्स वाई आई एम बॉर्न इन दैट फैमिली। इसीलिए कहते हैं कि आपने कर्म अच्छे नहीं किए होंगे, इसलिए इनके घर में पैदा हुए, राइट? तो कॉन्शियसनेस का अपना वो नेचर था, लेकिन नेचर का ऐसा व्यवस्था है कि वो उसी घर में आपको भेजेगा जैसा आप संस्कार आपने बनाया है। तो अगर आप अच्छा संस्कार बनाओगे इस जीवन में, तो आपको अच्छा घर मिलेगा। जो हम कहते हैं, अच्छे काम करोगे तो अच्छे घर में जाओगे, और बुरे काम करोगे, जैसा संस्कार बनाओगे वैसा घर। अब अगर जेनेटिक्स ही प्योर होता, अगर आपकी बात मैं मान लूँ, तो दैट मीन्स सारे जो मेरे एट्रीब्यूट्स हैं मेरे सन में आने चाहिए। बट डज इट हैपन लाइक दैट? वी नो दैट पेरेंट बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन बच्चा बिल्कुल ऑपोजिट है। पेरेंट बहुत शांत है, बच्चा अलग है। कहते हैं ना, फिर हमारे घर में तो ये नहीं था संस्कार, तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया? नहीं, इट इज ए फिनोटाइप, नो? सेकेंडली, राइट, सेकेंडली, एक ही घर में अगर दो चिल्ड्रन हैं, दोनों का संस्कार, अगर जेनेटिक्स ही होता तो दोनों का संस्कार सेम होना चाहिए था, ठीक है? अब आप कह रहे हैं वो फिनोटाइप है, डिफरेंट एक्सप्रेशन है, राइट? लेकिन आप ये मुझे बताइए कि अगर एक कॉन्शियसनेस है, एक को एक घर मिला अच्छा, एक को खराब मिला, ऑन व्हाट बेसिस? देयर हैज़ टू बी सम बेसिस, नो? एक लॉ होना चाहिए ना। तो आपको क्या ज़्यादा अपील करता है कि ये बच्चा जिसका संस्कार गुस्से वाला था, उसको भगवान ने किस घर में भेज दिया? जिसका वो फादर जो बनने वाला था वो भी गुस्से वाला होगा। अगर उसने काम अच्छे नहीं किए तो उसको कौन सा घर मिलेगा? जो घर थोड़ा सा लो होगा। तो उससे लॉ ऑफ कर्मा, ट्रांसफ़र सब सेटल हो जाता है। नहीं तो अभी मैं सोल जाके भगवान को शिकायत नहीं करूँगा, मुझे ऐसे घर में क्यों जन्म दिया, उसको अंबानी के घर में जन्म दिया, मुझे भी अंबानी के घर में जन्म देना था। देन गॉड विल से व्हाट? देयर हैज़ टू बी सम लॉ, नो? दूसरा चीज़, इसीलिए वो एग्जाम्पल्स दिखाए ट्रांसफ़र। अगर वो सिर्फ जेनेटिक्स होता, सब कुछ मेरे जेनेटिक्स में होता, तो वो 2 साल की बच्ची पे पियानो कैसे बजा सकती थी? मेरे फादर में तो वो नहीं था क्वालिटी। उसका फादर पियानो नहीं बजाता, उसका फादर तो लेबरर है, लेकिन उस बच्चे के अंदर जो सर आपको एग्जाम्पल उसमें दिखाया, एक वो बच्चा था, वो लेबरर का बच्चा है, लेकिन उसके इतनी नॉलेज है, पियानो की नॉलेज है, डांस की नॉलेज है, वो अच्छे अच्छे डांसर्स के साथ, मोजार्ट, अब हम सबने सुना है ना मोजार्ट म्यूजिशियन, तो जो बच्चा था 7 साल की उम्र में उसने मोजार्ट के साथ पियानो बजाया सिम्फनी में। वो पियानिस्ट का बच्चा नहीं था, म्यूजिशियन का बच्चा नहीं था। कहाँ से आए वो एट्रीब्यूट्स? अगर जेनेटिक्स काम करता तो क्यों लिया? कारण है, एक क्वालिटी अच्छी थी पियानो बजाने की। जैसे हम डॉक्टर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर अच्छे हो तो आपका ह्यूमन भी अच्छे हो सकता है एक बहुत गुस्से वाले डॉक्टर हो सकता है कि आप घर में बहुत मतलब अच्छा इलाज करते हो लेकिन ग्रीडी भी हो। जो ग्रीडी होगा वो किसके घर में जन्म लेगा? पुअर हाउस में। और सुदामा का एग्जाम्पल हमें पता है, वो उसके अंदर था कि मैं दूं, तो वो क्या लेकर गया? एक मुट्ठी चावल, और उसके बदले क्या मिला उसको? महल। तो जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, अब आप डॉक्टर्स हैं ना, पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो नेक्स्ट बर्थ में ये लॉज सारे डिफाइंड हैं। ये सब लॉज हमने सीखे यहाँ पर आके। जो हेल्थ का ध्यान रखते हैं उनको नेक्स्ट बर्थ में अच्छी हेल्थ मिलेगी ही मिलेगी। जो दूसरों को वेल्थ डोनेट करते हैं उनको वेल्थ मिलेगी। जो नॉलेज डोनेट करते हैं उनका माइंड शार्प होगा। और जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट फैलाते हैं वो नेक्स्ट जन्म में क्या बनेंगे?
डेटीज, देवी देवता बनेंगे. Okay. Yes, that is a law of attraction. Sir. ये जैसा भी स्पिरिचुअलिटी से जो आदमी का जीवन सफल होता है और समाज में शांति मिलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आज का जो सिनेरियो है अपने जो चल रहा है वो कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है. तो ऐसा स्कूल करिकुलम से अपन ये चालू नहीं कर सकते क्या, ताकि जो जनरेशन डेवलप हुए वो जनरेशन में यानी पॉजिटिव एनर्जी आए और ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रक्शननेस समाज का ख़त्म है. सर एग्जैक्टली यही मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था. मैं स्कूल में जाऊंगा तो मेरी बात कोई नहीं सुनेगा. आप खड़े होके बोलोगे स्कूल में करिकुलम डालो, आप प्रेसिडेंट हो, आपकी बात लोग सुनेंगे, तो आपने मेरा काम खुद ही कर दिया. एग्जैक्टली. लेकिन उसके लिए पहले हमें और जानना है इसके बारे में, तभी तो हम स्कूल में बोल पाएंगे. एग्जैक्टली यही हमारा रोल था. आई थिंक योर वर्क इज डन. थैंक यू सो मच सर. सर ने बोला ही है तो एक अनाउंसमेंट पहले कर देते हैं, बाद में थैंक्स गिविंग सेरेमनी करेंगे. आपने जैसे कहा स्कूल में या कॉलेजेस में ये हो सकता है क्या, तो आप सबको पता चली गया कि ये भी एक बड़ा स्कूल है. ये स्कूल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है जिसके 145 दीदी ने बताया 145 कंट्रीज़ में इसके सेंटर्स है, ब्रांचेस है. अगर हम सब भी अगर अपने आप को स्पिरिचुअल स्टूडेंट समझे और स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हैं, आज हमने ABC सीखा है केवल, मुझे ऐसा लग रहा है. अगर आप XYZ तक जाना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 7 डेज़ का बेसिक कोर्स होता है. उसको हम क्रैश कोर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम नहीं है, 3 दिन या 5 दिन. पर आपको आपका समय निकालना पड़ेगा, केवल 1 घंटा रोज़. और उसके टाइमिंग्स हमने यहाँ पे रखे हैं सुबह 8 से 9 और शाम को 7 से 8. पर अगर ये टाइमिंग्स आपको सूट नहीं होते हैं तो आप हमको अपने टाइम बता सकते हैं, दूसरा कोई भी टाइम, क्योंकि डॉक्टर्स के पास थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम होता है. और ये 7 डेज़ का कोर्स आप कर सकते हैं. स्पिरिचुअलिटी को और अच्छे से गहराई से समझ सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के प्रश्न अभी भी शायद सॉल्व नहीं हुए होंगे और शर्माते भी है पूछने के लिए. तो आप अपने प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आके प्राप्त कर सकते हैं. तो कल से ही हम स्टार्ट कर देंगे. कल करे सो आज कर, ऐसा बोलते हैं हम करते कि जल्दी से जल्दी करें, तो कल से हम स्टार्ट कर देंगे. और अब तो प्रेसिडेंट साहब का भी सिग्नल मिल गया है सबको. तो आप सभी को आना है, मुझे ऐसा लग रहा है, और लांजेवार सर सबको लेके आएंगे तो इसी हॉल में कोर्स हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है. सर के लिए कुछ लिखा था मैंने. सर, यू हैव दैट मैजिकल वर्ड्स एंड स्माइल विच कैन क्लोज एनी नेगेटिव फाइल. एवरी स्पिरिट कैन गेट दिस लाइसेंस. मेडिटेशन इज ऑल्सो साइंस एंड साइलेंस. ये सर ने हमको समझाया. आई मी एंड माई ब्रेन, इट्स ईजी फॉर ईच एंड एवरी वन टू ट्रेन. वो टेक्निक भी सर ने सिखाई. आवर ओन क्रिएटिविटी कैन गिव अस अ मैजिकल क्यूअर, जो टॉपिक है, इफ आवर इंटेंशंस आर नेचुरल एंड प्योर. तो थैंक्स अ लॉट टू डॉक्टर स्वपन गुप्ता सर. And lastly, I will like to invite Dr. Lanjewar sir, Giripunje sir, Nimbarte sir, IMA, IDN, Nima. Again, like to felicitate sir by giving memento, and also Raksha Didi. आपकी राइमिंग बहुत अच्छी है एंड इट्स स्पॉन्टेनियस. सी, थैंक यू सर. और ये आपको पता है मैजिक किसका है? दिस इज द मैजिक ऑफ राज योगा मेडिटेशन. वो आपकी क्रिएटिविटी को इतना बढ़ा देता है. थैंक यू सो मच. Thank you sir. Thank you to all. I will now like to invite Dr. Shrikant Giripunje sir for Thanksgiving ceremony. Dear friends, reflecting on the enlightening sessions we have experienced today on spiritual healing and well-being, I am filled with gratitude. Dr. Swapan Gupta sir's exploration of Beyond the Mind Manifest, the Magical Cure,
and Shivlal Kavle's insight on injecting well-being into well-doing have undoubtedly left an indelible mark on our hearts and mind. Their profound wisdom has unveiled path towards a balanced and harmonious life. Let's carry forward these transformative teachings and nurturing our inner selves and interacting well-being into every aspect of our existence. Thank you, esteemed speakers, for igniting our journey towards a more fulfilling and spiritually enriched life. May our paths be forever illuminated. Special thanks to Dr. Nirmal Channe sir and Raksha Didi and all the Brahma Kumaris for organizing this wonderful session. Thank you. थैंक यू श्रीकांत सर. लंच की व्यवस्था बाजू के गार्डन लॉन में की गई है. और एक और अनाउंसमेंट है, आज शाम को 4:30 से 6:30 संबंधों में सकारात्मकता बहुत सुंदर सेशन रखा गया है. अगेन डॉक्टर स्वपन गुप्ता एंड शिवलाल भाई जी का ही है. आपके परिचित जो भी होंगे, जो डॉक्टर्स नहीं हैं या डॉक्टर्स भी होंगे तो वो भी आ सकते हैं. जिनको ये सेशन का लाभ लेना है तो उनको आप भेज सकते हैं. शाम को 4:30 से 6:30 सेम हॉल में रहेगा. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.